Okay, so basically, our objective of this public administration rapid revision is first I will make you go through the class notes. We'll have a quick review of the class notes, and most of you, I think, how many all of you are from Lukman? Is there anyone who is from different coaching? Few of them, 2 or 3 guys are there from different institute. Can you just name it if you are from different institute? Sir, I am from Synergy. Okay. Wow. One is from Provansar and one is not. So don't, all of you don't have to worry, because, I have exposure of all the coaching institute. I am aware of the, strength and weakness of all the coaching institute notes. So, in the market, yeah, Ansari sir, most of you are from the Ansari sir notes. So what we have decided, first, our objective is to make the, Ansari sir note as a base note. We'll try to, make you go through all the topics that are there in the syllabus. Basically, if you look at the notes of Ansari sir, it is very extensively, there is extensive coverage of all the syllabus portions. So you don't have to look for other, materials. Just you can have the reference material as to, revise the things, but you can make your class note as the base. And most of you should keep your class notes ready, so that once we, start revising the things, so you are also able to recall the things. And I will also share the screen, so that, some of you who don't have that class notes, you can, look at the screen also. Okay. One is class notes that we'll be revising, thoroughly. We'll try to have a, glimpse of all the topics. Second is all the chapter wise, test series that is being conducted by Lukman IS. So we'll try to cover the last 2 years, test series question and answer. We'll see how how you have to decipher the demand of the question. What is the tail word? What is the command word? And you have to, how you are going to mold your content based on the demand of the question. Okay. So just a minute, I'll put on the mic also, because background noise will become. Just a minute. Yeah, am I audible? Yes, sir. Okay, thank you. Yeah. So one is class notes. Second will be your test series questions. So we are going to cover the 2 years test series question and answer, so that again the things will be revised. Whatever we'll discuss in the class notes, again things they will be revised in the test series question and answer. Third is the PYQ discussion. So last 3 to 4, 5 years questions we are going to cover extensively. So again that will be your third revision. And fourth is we will try to look at the toppers answer copy also, because the way they are writing, though they are not the ideal answer, but you will get to know the competition, how UPSC is giving the marks, how you can score better. So we'll try to look at the toppers strategy. So basically, if you are focusing on the class, so if you have if you are regular in the class, if you are looking at all the lecture sessions properly, and you do some homework, that is what I would recommend is, if you can just go through your class notes, since it is written by yourself and you are familiar with your writing, so you can just revise your class notes, and rest other things that we are going to do. You don't have to look at, you can do other prepare for other competitive exams, or you can do your own self study for other subject. So in the class we will cover class notes, test series question answer of the last 2 years, PYQ, and then toppers answer copy we'll discuss. Okay, this is the basic 4 things that we are going to discuss in the sessions that we are going to have. Okay, and then we'll try to wrap up this courses by December, and maybe by the first or second week of January, if it extends. Will not be so too fast. We'll try to cover it extensively. If you have any doubts, we'll always we'll be happy to answer all the doubts. Okay, so is there any confusion with regard to the sessions, or anything that you want to suggest? So please do that, so that once we begin, we'll have a marathon with the public administration syllabus. Anything you want to share, or anything you want to suggest in between? सर एक रिक्वेस्ट है. हाँ सुधांशु, प्लीज. सर वो जो नोट्स आपने स्कैन करवाए थे, एक बार उसका PDF शेयर कर दीजिएगा प्लीज. हाँ, tomorrow, by tomorrow we'll be creating another private group where we'll share the scanned copy of
Do you have your class notes right now? सर वो थोड़े से मतलब कुछ उसमें पोर्शंस है भी नहीं भी, ये इशू है. अच्छा, हाँ, the other topics, you have some topics missing, no? That will Yeah. share. Scan copy is almost ready. One note is I have given it for scanning, so will be ready by tomorrow. Okay. Will it be from the Lukman IS or बाकी Yeah, Pawan sir? Lukman. We are making the Lukman IS note as the base note, and Okay. other notes I will make you go through. Just I will make you skim through, like the Pawan sir notes. You can just skim through, or Thank you, some sir. of the test series questions will automatically cover the other value addition aspect. In the current affairs aspect also will be discussed, and wherever possible we'll add into the topics. Okay. Fine, sir. Thank you. Yeah. Anyone else? Anything to suggest or discuss? So I think if there are, can we proceed now? Yes, sir, we can start. Okay. Just I'll be using I will use the that pen also, so that you are focused on the screen itself. So I will keep the only screen in the and so that you don't and then class notes also you should try to keep the class notes, so that you can also highlight the points that we are going to discuss. Okay. Yeah, so we'll begin now. Just a minute. Okay, so is the screen visible to everyone? Yes, sir. Yes. Okay. So basically chapter 1, already we have discussed in bit, we have discussed briefly about the topics regarding the chapter 1. But again, what we want you to go through your class notes also. You can keep your class notes ready. Okay. So I will try to highlight the points also in between. So this will be our format. This is how we are going to cover up the topics that we'll be taking up in the class. So first chapter is Introduction to Public Administration. So in this, what we have discussed, so far what we have discussed in the earlier class is you should be able to understand the meaning of the terminology, the public and administration itself. Because the term public, if you are looking, if you are trying to understand the administration, and if you want to understand the rationality behind the administration as a public administration as a separate discipline, what you have to do, you have to understand that the meaning of the term administration. Okay. And then what do you mean by the term public? Why do we have the why don't we read the private administration? Can we separate, how do we separate, segregate the public administration from the private administration? That is one aspect that the questions are being asked. So the meaning is the word public, you have to be very clear. What do you mean by the term public? And then second aspect is with regard to scope. है ना, स्कोप में क्या है, हम देखते हैं जैसे जैसे अभी क्या गवर्नमेंट जब से डेमोक्रेटिक सिस्टम आया, पहले क्या था, मोनार्कियल सिस्टम था, राजा पूरा डिसाइड करता था, तो लिमिटेड पावर रूल लॉ एंड ऑर्डर पे फंक्शन होता था, है ना. स्कोप ऑफ द स्टेट वाज वेरी लिमिटेड. इट वाज रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू द लॉ एंड ऑर्डर फंक्शंस है, या फिर जो सिक्योरिटी रीजन्स है, या रेवेन्यू कलेक्शन है. स्टेट वाज ए मेयरली ए टैक्स गैदरिंग स्टेट, है ना. तो अगर ये स्टेटमेंट आता है कि मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन वाज मेयरली ए टैक्स गैदरिंग एडमिनिस्ट्रेशन, so if those type of questions are asked, and you have in such questions normally UPSC will ask you to critically examine. That means there are some it is not that only they have only the idea of tax gathering. That means if you are looking at the quotidian administration, they also had the concept of yogakshema, welfare activity. Means they were looking for carrying out certain welfare activities also. Many of the industrial projects were run by the state also. So scope, you can look at the scope from the ancient to medieval to the modern time. So as an activity, जब हम public administration को जब हम देख रहे हैं कि it is when we treat public administration as an activity, then we see how the scope of administration has changed over a period of time. So you should be able to interlink. Yeah, anything to say? Yeah, I think others can mute if you can raise your hand. You can ask the doubt in between also. Okay.
तो हम लोग क्या देख रहे हैं, मीनिंग क्लियर होना जरूरी है। पब्लिक मतलब क्या होता है, पब्लिक मतलब जैसे कई बार हम लोग पब्लिक को गवर्नमेंट के साथ भी लिंक करते हैं, या पब्लिक को पब्लिकनेस से लिंक करते हैं। तो एक क्वेश्चन आता है, पब्लिकनेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हैज बीन डाइल्यूटेड। तो इसका मतलब क्या है, जब हम टर्म पब्लिक को अच्छे से समझ जाएंगे तो हमको पब्लिकनेस पे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, पब्लिकनेस मतलब जो पब्लिक वेलफेयर का है, या लोगों के है ना कॉमन पब्लिक गुड के लिए जब काम होता है, तो दैट इज द पब्लिकनेस। और एडमिनिस्ट्रेशन का जो व्यू है, कि एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग है ना, कि किस प्रकार वो चेंज हुआ। पहले क्लासिकल एरा में जेनेरिक व्यू था, जेनेरिक से किस प्रकार वो पब्लिकनेस की हो गया, आज के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ही गवर्नेंस हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन जो है, आज हम लोग गवर्नेंस इक्वेट करने लगे। ठीक है। फिर उसके बाद सिग्निफिकेंस पार्ट है, दैट दैट वी हैव ब्रीफली डिस्कस, कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी है ना, कोई भी एक्टिविटी है सरकार का, लोगों का, सोसाइटी की जितनी भी समस्याएं हैं, तो उसके लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बिना तो पॉसिबल ही नहीं है ना। जो ड्वाइट वाल्डो ने कंसेप्ट दिया कोर एंड पेरिफेरी का, है ना, तो व्हाट वी आर डूइंग टुडे, कि जो लास्ट 2 क्लास में हमने ब्रीफली डिस्कस किया था, अगेन वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट इट टू द नोटबुक, क्लास नोटबुक। ओके। तो सिग्निफिकेंस में हमने देखा कि जो भी एक्टिविटी है सारा, स्पेशली लॉ एंड ऑर्डर फंक्शंस है ना, सिक्योरिटी फंक्शंस है, या स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस वाले कई सारे सेक्टर है, दैट कैन ओनली बी डन बाय द पब्लिक सेक्टर। तो इसलिए सिग्निफिकेंस क्या है कि, है ना, हैज द सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिड्यूस ओवर पीरियड ऑफ टाइम, और इट हैज इंक्रीज, और इट हैज बीन फ्लक्चुएटिंग। सो दीज आर 3 टाइप ऑफ पैटर्न्स, वी कैन लुक एट एंड द सिग्निफिकेंस पार्ट। उसके बाद हम लोग चैप्टर 1 जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, मीनिंग, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस, फिर हम लोग देखेंगे विल्सन का जो व्यू है, कि विल्सन ने जो ओपिनियन दिया है, कि है ना, कि विडो विल्सन को फादर क्यों बोलते हैं, है ना, वेर देयर एनी अदर थिंकर हु कंट्रीब्यूटेड इन द फील्ड ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बिफोर विल्सन एंड आफ्टर विल्सन, हाउ द व्यूज ऑफ विडो विल्सन इज डिफरेंट फ्रॉम थिंकर्स ऑफ द टाइम, है ना। तो वो हमको जानना जरूरी है। एक कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव होना चाहिए कि विल्सन ने जो ओपिनियन दिया है, उसके अलावा बाकी और लोगों ने जो ओपिनियन दिया है, हाउ दे आर रिलेटेड, हाउ दे आर। तो विल्सन का जो ओपिनियन है, जैसे एक क्वेश्चन आया था कि हाउ विड्रो विल्सन इज रेलेवेंट इवन आफ्टर 120 इयर्स 125 इयर्स ऑफ हिज एसे राइटिंग। तो उसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, जो विड्रो विल्सन के जो आइडियाज हैं, कीवर्ड्स है, वो आपको पता होना चाहिए, कि उसके मेजर कंट्रीब्यूशंस जैसे, है ना, साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, 3 E's का बात किया, बिजनेस लाइक अप्रोच की बात किया, है ना, या फिर कंपैरेटिव एस्पेक्ट का हाईलाइट किया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, वो सारे जो ओपिनियन, जो ओरिजिनेटर ऑफ आइडिया ऑफ मेनी ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उसका सिग्निफिकेंस अभी तक है ना। अब भी हम लोग जब भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं, तो उसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, कि हम उसमें देख रहे हैं कि विड्रो विल्सन के आइडियाज को स्टिल वी आर ट्राइंग टू वी आर जस्ट एलोंगेटिंग, एक्सपेंडिंग दोज ओपिनियंस। ओके, ठीक है। हाँ, मतलब ओके। एंड देन उसके बाद इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये एस्पेक्ट है ना, ब्रीफली हमने देखा था। अगेन विल मेक यू गो थ्रू इट। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, पब्लिक चॉइस अप्रोच है। तो आखिर न्यू पब्लिक में न्यूनेस क्या है, क्यों न्यू बोला जाता है। पब्लिक चॉइस अप्रोच में चॉइस मैक्सिमाइजेशन की बात है, राइट, है ना, मार्केट प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करे, वो सब है। फिर न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, क्यों न्यू पब्लिक मैनेजमेंट आया ही क्यों, है ना, उसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट क्या है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के न्यूनेस क्या था, है ना। ये कैसे विल्सन या टेलर के जो आइडियाज थे बिजनेस मैनेजमेंट का, या टेलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, उससे कैसे डिफरेंट है, वो सारा एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर गुड गवर्नेंस है। तो ये सारा चीज हम सबसे पहले जो अंसारी सर ने, ऑल ऑफ यू हैव द नोट्स। तो विड्रो विल्सन के व्यूज को हम लोग जानते हैं, है ना, कि विल्सन का व्यू जो हम लोग देखे, कि सबसे पहले क्या है, कि आखिर विड्रो विल्सन ने जो वो ऐसे लिखा है, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाट वर द फैक्टर्स दैट हैव इन्फ्लुएंस्ड द the Woodrow Wilson's opinion, why there should be a separate discipline of public administration। आखिर ऐसा क्यों है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए सेपरेट डिसिप्लिन, है ना। तो ओके, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो उसमें क्या है ना, सबसे पहले उसमें क्या, वो कई सारे थिंकर थे, क्लासिकल थिंकर्स जो हम लोग पढ़ते हैं, उसमें देखते दे आर कंसर्न। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एक तो हो रहा है, वहां पे क्या हो रहा है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो रहा है। तो वहां पे क्या, ऑब्वियसली वहां पे डिमांड क्या होगा, एफिशिएंसी का होगा, वेस्ट, है ना, और कैसे वर्क प्रोडक्टिविटी वर्कर्स का बढ़ाया जाए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सिस्टम क्या, सोसाइटी कॉम्प्लेक्स हो रहा है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अभी तक जो है ना, रूल ऑफ थंब से चल रहा है, नैरो, है ना, नैरो व्यू है, कोई अनसाइंटिफिक कोई रिसर्च नहीं है, कोई टूल्स एंड टेक्निक्स नहीं है। तो इसके लिए क्या जरूरी है, कि अपने को एफिशिएंसी इंपॉर्टेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन में भी एफिशिएंसी होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने बोला कंपैरेटिव, क्योंकि उसने जब, है ना, ही गॉट द एक्सपोजर इनटू द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। देन ही रियलाइज, ओ वी हैव द बेटर सिस्टम ओवर
Germany. Why do they have the better system? How to make our administrative system more efficient? So this was the concern. So are you able to get it? है ना? These are the major reasons why he wanted to have the comparison with the other administrative system. फिर एस्क्वायल सिस्टम यूएसए के अंदर हम लोग देखते हैं, पेंडल्टन एक्ट आता है ना, अमेरिकन गारफील्ड का वहां पे मर्डर भी हो जाता है, तो यूएस प्रेसिडेंट का भी मर्डर, सिविल राइट्स मूवमेंट चल रहे हैं, तो देयर वाज लॉट ऑफ पॉलिटिसाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. तो क्लियर, यानी देखो ये जो टर्म्स है इसमें कई सारे पॉइंट्स को हम बार रिएटरेट कर रहे हैं, क्योंकि ऑल दीज है ना, ऑल दीज पॉइंट्स दैट यू आर गोइंग टू यूज इन द upcoming chapters also, you will link the chapter 1 with the most of the topics that you are going to cover in the public administration. ये पहला चैप्टर ऐसा है, why we are emphasizing too much on the various topics, because this chapter is going to be used in almost all the topic that you will be reading in the public administration. Even in the GS also you are going to use many of those ideas, है ना, in suggestions, in in highlighting the problems. ठीक है? हाँ प्लीज. Yes. Anyone would like to ask something? And if you have any notes, instead of just writing in the chat, because I will not be able to see the chat, है ना, so you can directly unmute and ask it. Okay. ओके, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो मेजर फैक्टर्स क्या क्या है, फैक्टर्स हमने देख लिया. फिर मेजर कंट्रीब्यूशंस जब हमने देखा तो इसमें आपको ना इस जो विल्सन्स का साइंस है, साइंस क्यों है, क्या है, साइंस के अंदर क्या होना चाहिए, साइंस बनेगा कैसे एडमिनिस्ट्रेशन, फिर ये डायकोटोमी यानी पॉलिटिक्स को एडमिनिस्ट्रेशन से अलग करने का पहली बार असर्टिव तरीके से अगर किसी ने कहा तो दैट इज ही इज विड्रो विल्सन. उसको हमको डायकोटोमी के कंसेप्ट पे क्वेश्चंस आते हैं. डायकोटोमी है ना, व्हाट वाज हिज अंडरस्टैंडिंग, हाउ ही द आइडिया ऑफ डायकोटोमी वाज रीइंटरप्रेटेड, है ना. फिर अभी डायकोटोमी का स्टेटस क्या है, इसको डीएनए ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी बोलते हैं, है ना, डीएनए ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं. तो इसलिए डायकोटोमी वाला क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट. साइंस हो गया, जितने भी पेपर 2 है, स्पेशली जो हम लोग थिंकर पढ़ेंगे उसमें साइंस को एक्सटेंसिवली कवर करते हैं. डिसिप्लिनरी स्टेटस पे भी साइंस का क्वेश्चन आता है. ठीक है. फिर उसके बाद 3 इज इकोनॉमी है, एफिशिएंसी जो अपन ऑलरेडी देख लिए कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन टाइम है, वहां पे प्रोडक्टिविटी पे सिटीजन डिमांडिंग हो रहा है, डेमोक्रेटिक सिस्टम आ गया. लोग ना जैसे मैक्स वेबर का हम लोग पढ़ते हैं कि मैक्स वेबर के टाइम डेमोक्रेसी आया तो लोग इंपावर होने लगे, डेमोक्रेट डिमांडिंग हो गए, तो सिटीजन जो है एफिशिएंट सर्विसेज का डिमांड किया, है ना, तो इसलिए इकोनॉमी एफिशिएंसी एज ऑब्जेक्टिव हो गया. फिर कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन देख लिया, और उसने एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जिसपे क्वेश्चन कई बार आता है और कई बार हमको एथिक्स में भी यूज करने हैं, जैसे डेमोक्रेसी वर्सेस ब्यूरोक्रेसी का डिबेट है ना, और उसके डेमोक्रेटाइजेशन का बात है, या फिर जो सिटीजन एम्पावरमेंट आज के कॉन्टेक्स्ट में कि पब्लिक ओपिनियन कितना मैटर करता है. तो विड्रो विल्सन वाज आल्सो कंसर्न्ड अबाउट द कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. Why? Because if there are administrative system, they are very technically expert, है ना, टेक्निकली एक्सपर्ट है, दे कैन मैनिपुलेट इट, है ना. अब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्या है, दे आर एमेच्योर एडमिनिस्ट्रेटर्स, उसको टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, नॉलेज नहीं है. अगर वो ब्यूरोक्रेट चाहे तो मैनिपुलेट कर सकता है. तो पावरफुल इंस्टीट्यूशन, ब्यूरोक्रेसी और एडमिनिस्ट्रेशन जो है एक पावरफुल इंस्टीट्यूशन बन सकता है. उसके ऊपर कंट्रोल करने का वेबर भी बात करेगा, है ना, विल्सन भी बात करेगा. तो वी कैन रिलेट, है ना, कि जो कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एज ए इंस्ट्रूमेंट, है ना, इट शुड वर्क एज ए इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड ऑफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव. फिर उसके बाद इट शुड बी, अब 90s के बाद हम लोग 1990 के बाद जो डिस्कस किए थे कि गवर्नेंस का एरा है, अब सिटीजन एम्पावरमेंट का एरा है, चॉइस मैक्सिमाइजेशन का है, कंपटीशन है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है. तो जहां पे है ना सिटीजन वॉइस बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट, है ना, पब्लिक ओपिनियन, मीडिया है, सिविल सोसाइटी ग्रुप है, एनजीओ है, इसके. ठीक है. फिर उसके वीकनेस, क्रिटिसिज्म है, इम्पैक्ट, रिलेवेंस और करंट स्टेटस. ये सारे है ना कुछ क्वेश्चंस जो है ये है ना पीवाईक्यू में भी डिस्कस होगा और आगे हम लोग देखेंगे. तो कॉन्टेक्स्ट हमने समझ गया, कॉन्टेक्स्ट क्या है, प्रिवेलिंग सिचुएशन लिखेंगे, है ना, पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिक हो गया, है ना, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस है. तो वो सारे चीज हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से डेमोक्रेटिक ना जो कंटेक्स्ट है, कंटेक्स्ट आपको एक बैकग्राउंड पता होना चाहिए. अब इसमें क्या है, कॉन्टेक्स्ट में जो सर ने कहानी लिखा है इसमें आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. फाउंडिंग फादर के बारे में हमको पता है कि, है ना, ऑल ऑफ यू नो अबाउट द फाउंडिंग फादर, ये ऐसे है. तो नॉर्मली दिस इज यूज्ड एज ए इंट्रो, है ना. इंट्रोडक्शन में यू माइट हैव सीन द मॉडल आंसर आल्सो कि मेनी टाइम्स वी यूज दिस स्टेटमेंट एज ए इंट्रोडक्शन, दे हेल्प इन सेटिंग द बैकग्राउंड. तो हम विड्रो विल्सन ने एसे का लिखा है, स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1887 में लिखा, है ना. या कुछ लोग है ना नेट जेआरएफ का एग्जाम देते हैं या फिर
और भी एग्जाम्स जो होते हैं उसमें आओ ना, जैसे आप यूज कर सकते हैं term, ये सब फैक्टर्स अगर आपको है तो इंट्रोडक्शन में है ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सेट द कॉन्टेक्स्ट। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट आप ना जैसे इंट्रोडक्शन के लिए तैयार कर सकते हैं। दिट इज वेरी वेरी कॉमन इंट्रोडक्शन दैट नॉर्मली ऑल ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स राइट। इसी के आधार पे चाहे डिकोटोमी का क्वेश्चन हो या कंट्रीब्यूशन ऑफ विड्रो विल्सन के जितने भी हैं, जैसे बिजनेस लाइक अप्रोच, साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, किसी भी एस्पेक्ट पे अगर क्वेश्चन आता है यू कैन पुट इट एज ए इंट्रोडक्शन। ठीक है, एक जेनरिक टाइप का आइडिया आपको यहाँ से। तो इस पैराग्राफ का पर्पस वही है कि है ना, फाउंडिंग फादर है, सेमिनल ऐसे लिखा और दैट हैज क्रिएटेड बेसिस एट डाइकोटोमी बिकेम द डीएनए ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो वो एस्पेक्ट है ना, इस तरह से हम लोग हाईलाइट कर लें। फिर उसके बाद जो विड्रो विल्सन है, तो उसको हम लोग जानते हैं ही वाज फ्रॉम द लीडर था, एकेडमिशियन। तो ये सब अननेसेसरी है, नॉट रिक्वायर्ड टू नो एट द यंग एज, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो दिस सेक्शन यू कैन जस्ट स्कीप ऑफ। ओके, यू कैन स्कीप दिस सेक्शन। ओनली योर फोकस शुड बी, जो हमने अलग अलग कंट्रीब्यूशंस या कॉन्टेक्स्ट देखे कि कंसर्न्स फॉर एफिशिएंसी है ना, तो वो हमने डिस्कस कर ही लिया। कंपैरेटिव एनालिसिस है, क्यों, तो इसकी कहानी हमें पता चल गया कि मोनार्कियल सिस्टम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म लाना डेमोक्रेटिक सिस्टम में डिफिकल्ट हो रहा है ना, लेकिन मोनार्कियल सिस्टम में आसानी से हो रहा है। तो अगर अभी आज के कॉन्टेक्स्ट में ये क्वेश्चन आता है, यू कैन यूज द आइडिया इन द इन द गवर्नेंस GS2 आल्सो, इन द एथिक्स पेपर आल्सो, जब हम यूज करेंगे कि व्हाई इट बिकम्स डू यू थिंक इट इज डिफिकल्ट टू ब्रिंग रिफॉर्म इन द डेमोक्रेटिक सिस्टम, what are the challenges, why it is said that so, or is it right, can we have the counter perspective, है ना। अगर लोगों को एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म का पार्ट बना दिया जाए तो विल इट बी मोर प्रॉब्लम ओरिएंटेड, सॉल्यूशन ओरिएंटेड, या मोनार्कियल टॉप डाउन अप्रोच जो हिस्टोरिकल है हम लोग देखते हैं। लेकिन जब वुड्रो विल्सन का एनालिसिस कर रहे हैं तो उसमें जो एनालिसिस में निकल के आया कि जो मोनार्कियल सिस्टम है, मोनार्कियल सिस्टम में क्या हो रहा है कि थोड़ा सिस्टम को रिफॉर्म करना आसान था, जल्दी हो जा रहा है, कोई अपोजिशन नहीं है, दे वर एबल टू सप्रेस इट, और स्टेट हैज टू परफॉर्म, ब्यूरोक्रेसी डिपेंडेंट है, दे वर नॉट पॉपुलरली इलेक्टेड लाइक द डेमोक्रेटिक सिस्टम। सो इट वाज इन डेमोक्रेसी में तो है ना लोगों का लेजिटिमेसी है, तो वी कैन आल्सो अब चेंज द सिस्टम। मोनार्की में लेकिन चेंज करना मुश्किल है। इसलिए कंपैरेटिव एनालिसिस में आपको क्या ध्यान रखना है कि जो आज का जो कंपैरेटिव स्टडी हो रहा है या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, है ना, दिस टॉपिक इज अगेन गोइंग टू, ये इसको अपन यूज कर सकते हैं कहाँ पे, जब हम लोग कंसेंसस बिल्डिंग का बात करते हैं, पार्टिसिपेशन, गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट में, या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स का जब आइडिया हम लोग यूज करेंगे, वहां पे भी अपन है ना उसको यूज कर, इस आइडिया को यूज करेंगे। यानी कि एफिशिएंसी का कंसर्न ये बैकग्राउंड सेट करता है, कंपैरेटिव एनालिसिस का हमने देख लिया। फिर स्पॉइल सिस्टम है, जेनरिक आइडिया दैट वी हैव डिस्कस, पॉलिटिसाइज सिस्टम होता है सिविल सर्विसेज का, है ना। तो इसमें क्या कि इनएफिशिएंसी, करप्शन होगा ही, है ना। जेम्स प्रेसिडेंट, इसका मर्डर हो गया और पेंडल्टन एक्ट आया था। तो ये कहानी आपको जानने की जरूरत नहीं है, जस्ट यू शुड हैव द आइडिया कि भाई ये स्पॉइल सिस्टम होता क्या है, और यू कैन रिलेट इट टू द करंट डिबेट, लाइक द लेटरल एंट्री का जो डिबेट है, लेटरल एंट्री का डिबेट में हम लोग क्या देखें वापस से, अगेन देयर इज अ थ्रेट ऑफ रिवाइवल ऑफ स्पॉइल सिस्टम, पॉलिटिकल पेट्रोनेज का बात हो रहा है, politicians will political executive will always try to appoint someone who is close to the party, है ना, ideology of the party. So again there is a issue of merit based selection, यहाँ पे डिबेट क्या आ रहा है, मेरिट वर्सेस स्पॉइल सिस्टम। तो ये अब ये लेटरल एंट्री में क्या हो रहा है कि जब पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट हो रहा है, क्या जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है इंडिपेंडेंट है, व्हाट इज द मैकेनिज्म, इज द मैकेनिज्म मेरिट बेस्ड, तो वो डिबेट वापस से रिवाइव होता है। अगेन विड्रो विल्सन इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट इन द करेंट कॉन्टेक्स्ट। तो इस टॉपिक में जो स्पॉइल सिस्टम में सर ने लिखाया है, यू डोंट हैव टू रीड ऑल द टॉपिक्स, जस्ट इट इज वन टाइम रीडिंग। एक बार आपको पता चल गया कि हाँ उस समय का जो फैक्ट है दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, है ना, तो जस्ट यू कैन स्कीप the content that sir has given in this, just you should have the idea of what is a spoil system। और आज के कॉन्टेक्स्ट में स्पॉइल सिस्टम, जैसे मेरिट बेस्ड सिस्टम हम लोग ना जब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें भी हम लोग देखते हैं ब्रिटिश के टाइम ना एक कमिटी बना था, है ना, मैकाले कमिटी, उसने मेरिट बेस्ड, या 1854 में जो अपन सिस्टम देखते हैं कि ब्यूरो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में जो मेरिट बेस्ड ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम लाया गया इंडिया के अंदर ब्रिटिश के टाइम, वो भी क्या था, है ना, तो वो भी एक है ना एक रिफॉर्म था, मेजर्स था। तो एक आइडिया को रिलेट करना आपको, है ना, पेपर 2 में भी करना है, और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की जब भी बात होगी वहां पर यूज कर लेंगे, ठीक है। और स्पॉइल सिस्टम है क्योंकि देखो ये डायकोटोमी आखिर ऐसा आया क्यों, क्योंकि डायकोटोमी हम लोग क्या देख रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है पॉलिटिसाइज हो रहा है, पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम कर रहा है, इनस्टेबिलिटी है, और हर 5 साल में पूरा का पूरा सिस्टम चेंज हो रहा है। इससे क्या होगा, इनस्टेबिलिटी आ गया,
है ना। अब प्लस में इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा हो गया, पॉलिटिकल पार्टी अपने पब्लिक रिसोर्सेज को, वेल्थ का मिसयूज करने लगे। इसीलिए हम ये जो विड्रो विल्सन का जो आइडिया है कि हमको इसको डायकोटोमी का ये लाना चाहिए, ताकि जो एक तो वहां पे अर्बन गवर्नेंस सिस्टम बहुत ही एफिशिएंट हुआ कि मैनेजरियल ऑटोनॉमी दिया जा रहा है, बिजनेस लाइक अप्रोच अडॉप्ट किया गया है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्या करेगा, पॉलिसी बना दे, और they were the city administration was given the opportunity, freedom, autonomy to carry out हेलो activity. हाँ हाँ प्लीज। सर, जो लेटरल एंट्री के अलावा जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं लाइक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एनएचआरसी, सीआईसी, तो करेक्ट, उसमें भी सर पॉलिटिकली वो अपॉइंट कर देते हैं, वेरी गुड क्वेश्चन है ना, बहुत तो बढ़िया उसको भी क्वेश्चन। रिलेट कर सकते बिल्कुल रिलेट कर सकते हैं हैं। यस। उसको हम लोग। अब उसमें जैसे ना अभी सुप्रीम कोर्ट ने लेटेस्ट जजमेंट तो दिया है कि देयर शुड बी, है ना, अब तो हम्म। है ना बिल लेके आया, उसको ओवररूल करने के बाद सीजीआई को बाहर निकालने का। तो अभी सीजीआई ने जो, या सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट में, तो बोला एक तो लेजिस्लेचर का आ जाएगा तुम्हारा, है ना, लीडर ऑफ अपोजिशन, लेजिस्लेटिव रिप्रेजेंटेशन हो गया, एग्जीक्यूटिव के लिए है ना प्राइम मिनिस्टर हो गया, और यस। जुडिशियल रिप्रेजेंटेशन के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो चीफ तीनों जस्टिस। यस। इंस्टीट्यूशन है ना, तो देयर विल बी क्रॉस चेक्स एंड बैलेंस, ताकि किसी एक का डोमिनेंस ना आ जाए। अब नॉर्मली क्या होता है इलेक्शन कमीशन में, एक ऐसा फ्री एंड फेयर इलेक्शन, तो दैट इज द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। अब उसमें क्या होगा, अगर मान लो कि पॉलिटिसाइज अपॉइंटमेंट हो रहा है, एग्जीक्यूटिव है ना द्वारा जो अपॉइंटेड होगा, दे आर अपियरिंग, दे इट अपियर्स दैट दे आर फेवरिंग द एग्जीक्यूटिव। तो अब उससे क्या हो रहा है कि इम्पार्शलिटी और फेयरनेस पे, है ना, ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी पूरा डेमोक्रेटिक सिस्टम का डिपेंडेंट है। तो इंस्टीट्यूशंस लाइक इलेक्शन कमीशन, सीएजी, है ना, तो इसलिए हम जब भी क्वेश्चन आता है ना, सीएजी पे हो, इलेक्शन कमीशन हो, तो हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंस होना चाहिए, जुडिशरी का इंडिपेंडेंस होना चाहिए, है ना। तो दिस इज हाउ यू रिलेट द स्पॉइल सिस्टम या इंडिपेंडेंस क्यों जरूरत है ना। वेरी गुड ऑब्जर्वेशन बाय, है ना। तो यू कैन ऑल्सो पुट योर ओपिनियन इन बिटवीन, दैट्स वेरी नाइस ऑब्जर्वेशन, वेरी गुड। तो अब हम लोग, है ना, रिलेशनशिप के, देखो कोई भी कंसेप्ट है ना, कोई भी कंसेप्ट को हमको इस एकदम, ये जो बुक में दिया है, सर ने जो लिखा है, उस आइडिया को ग्रास्प करना है और रिलेट करना है डे टू डे अफेयर से। इफ यू आर एबल टू रिलेट द आइडिया कंसेप्ट टू द contemporary current developments, तो यू हैव द मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट, यू आर एबल टू मोल्ड द कंटेंट, या जो भी कंटेंट है, एज पर द कॉन्टेक्स्ट, दैट इज व्हाट इज नीडेड, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था, बहुत बढ़िया है। ठीक है, हम रिलेशनशिप में वही देख रहे हैं कि आखिर ये विड्रो विल्सन, ही वाज फेड अप विद द पॉलिटिसाइज सिस्टम, जो पेट्रोनेज बेस्ड सिस्टम था। तो वहां पे क्या होता है, प्रोक्सिमिटी, जो पार्टी के करीब करीब है उसको अपॉइंट किया जाएगा आइडियोलॉजीज द्वारा, तो अदर, है ना, तो वहां पे क्या, डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए भी वो गलत है। तो इसलिए वहां पे मेरिट बेस में क्या होता है, फ्रीडम होता है, ओपननेस है, सबके लिए अपॉर्चुनिटी है। तो वो हम लोग देखे। तो हम जो एडमिनिस्ट्रेशन और रिलेशंस की बात करेंगे, जैसे यहाँ पे इट इज बिकमिंग हार्डर टू रन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये स्टेटमेंट कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाउ इट इज बिकम, जैसे मान लो इंडिया इंडिपेंडेंट का आया, है ना, आफ्टर इंडिपेंडेंस वी सी देयर इज टॉक, वी आर टॉकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। डू वी, despite we have the constitution but we don't have the constitutionalism, critically examine। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, या फिर आता है कि why it is despite having the constitutions why don't we have the constitutionalism, या कुछ ऐसा, है ना, क्वेश्चन किसी भी प्रकार का आ सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म अगेन दैट यू आर गोइंग टू रीड इन द पेपर 2 चैप्टर, है ना, 2 जो टॉपिक है उसमें कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म टर्म है कि कॉन्स्टिट्यूशंस के जो आइडियल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, हाउ मच टू व्हाट एक्सटेंट वी आर एबल टू फुलफिल दोज आइडियल्स, हाउ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट इट। तो विड्रो विल्सन का जब हम कॉन्टेक्स्ट इमेजिन करते हैं, इफ यू आर ऑल ऑफ यू आर गोइंग बैक टू द विड्रो विल्सन, है ना, विड्रो विल्सन का टाइम, जस्ट इमेजिन ऑल ऑफ यू आर बीइंग टेकन इनटू टाइम मशीन। अब तुम सबको, है ना, हम ले चलते हैं विड्रो विल्सन के टाइम में। उस समय हम क्या देख रहे हैं, स्पॉइल सिस्टम है ना, पोलिटिसाइजेशन हो रहा है, करप्शन, स्पॉइल सिस्टम। तो कारण क्या हो कि मेरिट बेस्ड सिस्टम नहीं है, यूथ जो है अनएम्प्लॉयड हो गया है ना, वहां पे पॉलिटिकल प्रोक्सिमिटी से जॉब मिल रहा है। तो इवन इफ आफ्टर डूइंग लॉट ऑफ रिसर्च, है ना, academy having all the academic qualifications, you are not getting job in the administrative system, you want to bring change but you don't have the opportunity। अब दूसरा क्या हुआ कि वहां के जितने एकेडमिक थिंकर्स थे, they were mostly they were engaged in the पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की, सोशलिज्म है, डेमोक्रेसी है, फिलोसफी, यानी फिलोसफिकल एस्पेक्ट पे तो काफी बातें हो रही थी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के इम्प्लीमेंटेशन पे कोई ध्यान नहीं दे रहा था। पॉलिसी तो बेस्ट बनाएंगे एकदम। अभी इंडिया में भी क्या समस्या है, अगेन यू कैन रिलेट इट टू द current context, how in India we have the best of the policies, we come up with the best of the policy in the world, but on ground if you look at its implementation, again it is, government is a failure।
तो what is the reason? There is lack of focus on the implementation of those policies, of those constitutional ideas. बड़ी बड़ी बातें करते लेकिन ग्राउंड पे कुछ है नहीं। तो यही रीजन है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का कंसेप्ट इसलिए आया है कि कॉन्स्टिट्यूशंस के आइडियल्स को इम्प्लीमेंट किया जाए, है ना। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आता है कि व्हाई इट इज गेटिंग हार्डर टू रन ए कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि अब यहाँ हम लोग का फोकस कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन पे नहीं था। वुड्रो विल्सन ने इसलिए स्पेशली एम्फेसाइज किया वी शुड हैव ए सेपरेट डिसिप्लिन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उसमें है ना, दिस इज हाउ ही बिकेम द फाउंडिंग फादर, कि हमको कैसे आखिर ये गवर्नमेंट कैसे एफिशिएंटली रन करे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे एफिशिएंट एंड इफेक्टिव बनाया जाए। वो एक एस्पेक्ट हो गया। साइंस में हम लोग देखते हैं कि सेपरेट डिसिप्लिन हो और ये थ्योरीज बिल्ड करे, प्रिंसिपल, टूल्स एंड टेक्निक्स हो। आखिर हम एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसे बनाएंगे, या साइंस कैसा होता है, साइंस फैक्ट के आधार पे हो, है ना, इंपेरिकल एविडेंस हो, पॉजिटिविज्म जिसको हम लोग बाद में पढ़ते हैं, अप्रोचेज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे प्रिंसिपल्स, टूल्स एंड टेक्निक्स डेवलप हो, कई सारे थिंकर्स को इनकरेज किया गया, है ना। यू शुड ऑल शुड ट्राई टू स्टडी द वेरियस टूल एस्पेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें हम बेस्ट तरीके से कैसे काम करें, है ना। तो ये आइडिया। फिर तो उसके बाद फिर आता है हमारा डायकोटोमी का कॉन्सेप्ट। सर हाँ प्लीज। सर, ये जो लाइन है कि इट इज हार्डर टू रन द कॉन्स्टिट्यूशन देन टू मेक वन, या हाँ फिर there is lack of focus on implementation of constitution and the policies, so how Right. can we interlink it with the public policy? हाँ, इंटरलिंक। देखो, एक तो ये जो बात किया ना, जैसे अपन नॉर्मली क्या ना, अगर वुड्रो विल्सन का टाइम को हम लोग डिवाइड करते हैं तो 3 फेज में बांटते हैं। 3 फेज में हम लोग नॉर्मली डिवाइड करते हैं। पहला फेज क्या था, डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल, यानी फाइट फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, या कि लिमिटेड गवर्नमेंट होना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का आइडिया वहां से एक पीरियड ऑफ स्ट्रगल था, है ना। जितने भी रेवोल्यूशन अपन देख रहे हैं, अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, है ना, तो हिस्ट्री में, वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो पहला फेज हो गया कॉन्स्टिट्यूशन लाने की लड़ाई। दूसरा फेज हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन आ जाए, आइडियोलॉजी आए, तो पॉलिटिकल थिंकर्स जितने भी है ना, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, एरोसो है, या है ना लॉक है, तो इन सारे लोगों का थिंकर से आइडिया है स्टेट लिमिटेड होना चाहिए, पावर लिमिट करना है। अब उसके लिए इंडिपेंडेंस, मोंटेस्क्यू का सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है, ये तो आ गया। फिर कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन हो गया। लेकिन अब तक क्या फोकस, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस बहुत ही, है ना, बहुत ही उसमें डिटेल्ड एनालिसिस हम लोग फिलोसफी, आइडियोलॉजी सब पे करते हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात आता है तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें एक काइंड ऑफ मैनिफेस्टो है ना, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के लिए या सिस्टम ऑफ गवर्नेंस के लिए एक पॉलिटिकल मैनिफेस्टो, जैसे अपन क्या डीपीएसपी है ना, या फंडामेंटल राइट्स है। तो कुछ डायरेक्टिव्स दिए गए हैं सरकार को, उसको लागू करना है। उसके लिए सरकार क्या कर रहा है, पॉलिसी लेके आ रहा है। क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टर्म्स मेंशन्ड है या लाइंस मेंशन्ड है, दे आर ओनली मैक्रो टर्म्स, है ना, वो एक एब्स्ट्रैक्ट तरीके से लिखा गया है। उसको ऑपरेशनलाइज करना है, तो फॉर दैट वी नीड द पब्लिक पॉलिसी। अब वो पब्लिक पॉलिसी का अगर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन होता है, अगेन द आइडिया, आइडियल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विल ऑटोमेटिकली विल रियलाइज, है ना। उसको रियलाइज करने का वही तरीका है, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करो। पॉलिसी इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, ब्यूरोक्रेसी कर रहा है, यानी ब्यूरो। हाँ हाँ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब कि बेसिकली जो सरकार है, हाँ हाँ that हाँ, government should be a limited government, right? There should be checks and balances. There should not वेरी be गुड, absolute. करेक्ट। But public is something related to the planning and implementation. So how we are, converging both the topics, like constitution का मतलब। हाँ, तो जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का कॉन्सेप्ट है ना। सर हाँ हाँ प्लीज। सर इसको हम इससे कनेक्ट कर सकते हैं ना कि लाइक फंडामेंटल राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, राइट टू हाँ। इक्वालिटी, इक्वल वेजेस एंड जेंडर इक्वालिटी, शेड्यूल 6 एंड शेड्यूल 5, इनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। बिल्कुल, जैसे आर्टिकल 21 है ना, राइट टू लाइफ है, कई सारे है ना, प्राइवेसी है। जो पब्लिक पॉलिसी क्या है, पब्लिक पॉलिसी में हम सिर्फ वेलफेयर एक्टिविटी नहीं देख रहे हैं, एज ए होल देख रहे हैं। पब्लिक पॉलिसी में वेलफेयर एक्टिविटी भी है। सरकार को रेगुलेट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी आ रहा है ना, लोगों को एम्पावर करने के लिए एक्ट भी आ रहा है ना, पावर को डिसेंट्रलाइज करने के लिए भी कई सारे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं पॉलिसी लेवल पे। तो पॉलिसी को हम लोग क्या देख रहे हैं, एज ए ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, है ना। पब्लिक पॉलिसी जब बात कर रहे हैं, एक तरफ क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है, दूसरी तरफ पब्लिक पॉलिसी है। और पब्लिक पॉलिसी को, है ना, इम्प्लीमेंट करने के लिए अपन क्या अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस बना रहे हैं, कोडिफिकेशंस कर रहे हैं। तो वो अल्टीमेटली क्या है कि कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है ना, लिमिटेड गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट को पब्लिक पॉलिसी के थ्रू भी कर रहे हैं, और लोगों का एम्पावरमेंट होगा। देखो, पावर एज ए होल ना, जब हम लोग पावर की बात करते हैं ना, पावर हैज ए लिमिटेड कॉन्सेप्ट, मतलब लिमिटेड है पावर। अब वो क्या होता है, अगर मान लो अपवर्ड डेलीगेशन ऑफ पावर, जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, है ना, सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज ए पॉलिटिकल टर्म, या आई थिंक मेनी ऑफ यू विल बी अवेयर ऑफ द टर्म सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एथिक्स में भी पढ़ते हैं। आर यू ऑल अवेयर? Yes, sir.
हाँ, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि एक एग्रीमेंट हुआ सिटीजन और एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट के बीच में, कि है ना, हम लोग आपको टैक्स से पैसा दे देंगे, आप हमारे लिए काम करना। तो देयर वाज अपवर्ड डेलीगेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर या इकोनॉमिक पावर। हम क्या देख रहे हैं, अपवर्ड डेलीगेशन हुआ, लेकिन बाद में सिटीजन क्या हुआ, धीरे धीरे रियलाइज किया कि जो पावर हमने दिया गवर्नमेंट को, दे आर मिसयूजिंग इट, है ना, उसका मिसयूज हो रहा है और लोगों को और थ्रेटन किया जा रहा है। तो लोग ने अब डिमांड करने लगा, देयर इज रिवर्सल पॉलिसी ऑफ रिवर्सल। नाउ वी आर लुकिंग फॉर मोर एंड मोर एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन। ठीक है, सिटीजन एम्पावरमेंट, इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन है, डेमोक्रेटाइजेशन है, तो डेलीगेशन ऑफ पावर। तो अब डायरेक्टली लोगों को एम्पावर किया जा रहा है, कैपेबिलिटी अप्रोच जैसे आ रहा है आज के कॉन्टेक्स्ट में। तो पब्लिक पॉलिसी को हम देखो, इसको कनेक्ट करने का सिंपल है कि कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियाज को हम रियलाइज कैसे करते हैं, थ्रू पब्लिक पॉलिसी, है ना। तो पब्लिक पॉलिसी इंप्लीमेंट ब्यूरोक्रेसी करता है, वहां पे हमें ब्यूरोक्रेसी को थोड़ा मेरिट बेस्ड होना इसलिए जरूरी हो जाता है। ठीक है, हाँ सुधांशु, और इसमें पूछ रहे हैं? फाइन सर, थैंक यू। ओके, हाँ ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं, एक तो पॉलिटिक्स है, एडमिनिस्ट्रेशन है। अब इसमें ना, जैसे ये टेबल जो है नॉर्मली है ना, यू हैव द जनरल आइडिया, परमानेंट नॉन परमानेंट है, पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी एग्जीक्यूशन, ये सारे कॉन्सेप्ट ना कॉमन होता है। तो व्हाट यू कैन डू, जैसे गोल्स और एंड वाला है ना, मीन्स वाला, ये पॉइंट थोड़ा सा कई बार स्लिप कर जाता है। तो देखो, हम जब डिफरेंशिएट करते हैं पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन, हम लोग को पता है परमानेंट, हम लोग ऑल ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर परमानेंट साइड, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो पता है पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। लेकिन गोल्स और एंड वाले पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, कई बार स्किप हो जाता है। जो आंसर शीट में मैंने इवेलुएट किया, तो कई लोग गोल्स और मीन्स वाले जो डिफरेंस है ना, वो नहीं लिख पाते। इलेक्टेड सेलेक्टेड सब लिख देंगे। और दूसरा लेमैन वाला भी आइडिया है ना, यूज कर सकते हैं, थोड़ा टेक्निकल हो जाता है। तो दिस 2 पॉइंट्स है ना, यू शुड ट्राई टू कीप इन माइंड, जो डिफरेंस हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो अब देख रहे, देयर वाज सेपरेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम पॉलिटिक्स। तो गवर्नमेंट क्या करेगा, डिसीजन लेगा। आज के कॉन्टेक्स्ट में भी वही है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव डिसीजन लेता है, और इन जनरल मतलब नोट, है ना, देयर आर ओवरलैपिंग। जो डायकोटोमी में फ्यूजन निकोलस हेनरी ने जो दिया है कॉन्सेप्ट ट्वाइलाइट जोन का, या फ्यूजन का कॉन्सेप्ट है, तो उसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि देयर इज ओवरलैपिंग। वो अभी हम भूल जाते हैं फॉर द टाइम बिंग, कि जस्ट वी आर फोकसिंग ऑन द सेपरेट पार्ट, डिस्टिंक्ट पार्ट, है ना। एग्जीक्यूट करेगा, ये डिसीजन लेगा, ये कब के टाइम के बात कर रहे हैं, विड्रो विल्सन के टाइम का। आज के कॉन्टेक्स्ट में काफी चेंज हुआ है ना। तो दैट्स व्हाई द आइडिया ऑफ डायकोटोमी विल बी रीइंटरप्रेटेड इन द कॉन्टेम्पररी टाइम। उस समय का जो आइडिया, उस बिल्कुल एकदम, है ना, एकदम बस कंप्लीट आइसोलेशन की बात किया हुआ है ना, एक वॉल क्रिएट करने का बात किया उसने, कि पॉलिटिक्स को एडमिनिस्ट्रेशन से हम अलग करते हैं। तो ये कंसेप्ट हो गया। उसमें वही था कि भाई पॉलिटिक्स का काम पॉलिसी मेकिंग है, और एडमिनिस्ट्रेशन का काम एग्जीक्यूशन है। सेपरेट एक्टिविटी है, तो उसको अलग तरीके से डील करना है। तो डायकोटोमी में, इसलिए अब जो इम्प्लीमेंटेशन है ना, तो एडमिनिस्ट्रेशन को बिजनेस लाइक अप्रोच की बात उसने किया। जो मेजर क्वेश्चंस इससे भी आते हैं, है ना, स्पेशली कंपलसरी क्वेश्चंस आते हैं। कंपलसरी वाला जो पार्ट होता है, सेक्शन ए वाला जो है, उसमें कई बार है ना 5 नंबर में, 10 नंबर वाले क्वेश्चन में आ जाता है, 10 मार्कर में ये डायरेक्टली क्वेश्चन इस तरह का आ जाता है। फील्ड ऑफ बिजनेस है, तो उसको एग्जामिन भी करना है, कई बार काउंटर भी लिखना है। तो पॉलिटिक्स में क्या होता है, हरी एन टाइप है ना, वहां पे क्या इनस्टेबिलिटी है, स्क्वायर सिस्टम है, पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है। तो उसको हटा के हमको क्या करना है, एफिशिएंट मेरिट बेस्ड सिस्टम लेके आना है, जो नॉन पार्टी है ना, नॉन पार्टीशन हो और इम्पार्शियल हो। तो ये आइडिया आपको करेंट कॉन्टेक्स्ट में भी लिंक है, गुड गवर्नेंस में भी लिंक है। या प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो स्टेटमेंट दिया था, क्या दिया था स्टेटमेंट, कैन एनीवन रिकॉल? या यू कैन अनम्यूट एंड से इफ यू आर एबल। करेंट प्राइम मिनिस्टर हैज टोल्ड समथिंग अबाउट द डायकोटोमी, है ना, सर ने भी क्लास में बताया था कि देयर शुड बी पॉलिटिकल इंटरवेंशन, नॉट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, है ना। तो पॉलिटिकल इंटरवेंशन क्या होता है कि मतलब यू ना, अगर मान लो कि जैसे मान लो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम दे आर फेसिंग प्रॉब्लम, है ना, दे आर नॉट एबल टू इफेक्टिव इम्प्लीमेंट, लोगों से बात करना है, कंसेंसस बिल्ड करना है, उसमें पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का रोल आ जाता है। और जहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, ताकि है ना फ्रीली बिजनेस लाइक मेरिट बेस्ड सिस्टम हो, और नॉन पार्टीशन तरीके से काम करे, इम्पार्शियल तरीके से काम करे। तो फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, इज ए फील्ड, कैन वी कंप्लीटली इक्वेट एडमिनिस्ट्रेशन विद द बिजनेस? दैट इज अगेन द क्वेश्चन, यू नो, इट विल बी आस्क्ड। तो जो हम लोग जेनेरिक व्यू कहते हैं ना, एक जो जेनेरिक व्यू आता है कि भाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, जेनेरिक व्यू में क्या होता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज इक्वल टू प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, उसके साथ हमने इक्वेट कर दिया। तो दैट इज प्रॉब्लमेटिक, कि जो क्लासिकल फेरा है, क्लासिकल एरा में हम लोग क्या देख रहे हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विल बी इक्वेटेड विद द, है ना, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। बोला ना, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बिजनेस लाइक अप्रोच लेके आओ, है ना। बाद में रियलाइज होगा कि नहीं, ये जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आता है, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इस जेनरिक व्यू को रिजेक्ट करेगा, बोलेगा नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है।
पब्लिक सेक्टर का तो काम है ना, पब्लिकनेस और वैल्यू ओरिएंटेड ये सब होना चाहिए। तो वो डिबेट हम बाद में कनेक्ट करते हैं यहाँ से। फिर जो तीसरा कंट्रीब्यूशन है 3 इकोनॉमिक एफिशिएंसी, मतलब जो इनपुट दे रहे हैं आउटपुट है ना वेस्टेज नहीं होना चाहिए। इकोनॉमी मतलब मिनिमाइज करना है, रिसोर्स को मिनिमाइज करना है और आउटकम को मैक्सिमाइज करना है। इफेक्टिवनेस मतलब जो गोल है ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल होना चाहिए। जैसे हर 5 साल में इलेक्शन होता है, हम सरकार के इफेक्टिवनेस को कि भाई सरकार ने जो प्रॉमिस किया कितना है ना इम्प्लीमेंट किया। तो विड्रो विल्सन क्या चाह रहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका काम होना चाहिए एफिशिएंट तरीके से, यानी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होना चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, इनपुट को मिनिमाइज करना और मैक्सिमम आउटपुट होना चाहिए। ये टर्म क्लियर होने चाहिए। इसमें क्या आपको ध्यान रखना है, इकोनॉमी एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस क्या है, क्यों है। इफेक्टिवनेस मतलब जो आउटकम होता है, और बाद में एक और टर्म आ जाता है इक्विटी का, है ना, किरण अग्रवाल कमेटी है या और भी कई सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म में इक्विटी फोर्थ ई जो ऐड हो जाता है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है कितना इक्विटेबल है। क्योंकि ऑक्सफाम का रिपोर्ट आया है ना, ऑक्सफाम के रिपोर्ट ने भी बताया कि भाई इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा हो गई है, तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लॉ है, उसको कैसे ओवरकम किया जाए। तो ये 3 टर्म जितने भी इकोनॉमी एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस क्लियर होना चाहिए। तो एक बार कंसेप्ट क्लियर होगा, यू डोंट हैव टू लुक एट दिस आइडियाज, ओनली यू हैव टू रिमेंबर द 3 दैट्स व्हाई नो शॉर्ट नोट जो हमने बनाया था उसमें 3 मेंशन किया था। दोनों डिफरेंस है, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, है ना, जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग कि हाँ ठीक है इनपुट आउटपुट है, गोल है। तो ये क्वेश्चन कभी नहीं आता इफेक्टिवनेस और है ना, ये हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो दीज आर देयर विल बी मेनी, है ना। देखो इस चैप्टर में हम लोग थोड़ा डिटेलिंग इसलिए भी कर रहे हैं कि आपको एक आइडिया मिले कि कौन सा कंटेंट हमारे समझने के लिए है और कौन से कंटेंट का यूज हम आंसर्स में करने वाले हैं। ये हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, यू डोंट हैव टू मेक शॉर्ट नोट में इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 3 इसका कंसेप्ट अपन देख लिया। फिर कंपैरेटिव में हमें क्या ध्यान रखना है भाई, उसको ओरिजिनेटर भी बोलते हैं, ओरिजिनेटर ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसका कंसर्न क्या था, ही वाज कंसर्न अबाउट इंप्रूविंग द अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन। जो कल्चरल लेंस की बात किया ना, तो कल्चरल लेंस में हम लोग एथनोसेंट्रिसिज्म एक टर्म होता है जो नॉर्मली इट इज मेनी टाइम्स यू गेट इन द क्वेश्चन, एथनोसेंट्रिसिज्म है ना, सेड इट एथनोसेंट्रिसिज्म, या जो थर्ड कॉन्फ्रेंस है और या सेकंड मेंडोवी कॉन्फ्रेंस हो उसमें एथनोसेंट्रिसिज्म कम हो गया, नॉन वेस्टर्न कंट्री का पार्टिसिपेशन आ गया, है ना। लेकिन स्टार्टिंग जो कंपैरिजन था विड्रो विल्सन का, तो ही तो फाउंडिंग फादर उसका कंसर्न अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को रिफॉर्म करना था। अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को रिफॉर्म कैसे करेंगे, हम ब्लाइंड इमिटेशन नहीं करेंगे। जैसे आजकल क्या है कि हम लोग क्या, इंडिया में स्पेशली प्रॉब्लम ये हो रहा है, हम कहीं से बेस्ट मॉडल लाते हैं और उसको चिपकाने का कोशिश करते हैं नॉन इकोलॉजिकली टॉप डाउन अप्रोच लेके, तो वो फेलियर होता है। तो इसलिए अगर कल्चरल लेंस नहीं है तो पीपल का एक्सेप्टेंस नहीं होगा, है ना, लोग एक्सेप्ट नहीं करेगा तो वो सक्सेसफुल हो नहीं सकता है। यानी कंपैरेटिव स्टडी करना है लेकिन उसमें हम उसको मॉडिफाई करेंगे। जो रिक्स का जो आइडिया है, रिक्स बाद में जो इकोलॉजिकल मॉडल लेके आता है वो इसी के आइडिया से कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड है ना। तो वहां से अपन देखते हैं कि भाई जो वहां पे लोकल कंडीशंस अलग होते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, सोशल बैकग्राउंड, है ना, सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल बैकग्राउंड डिफर करता है। इसलिए अपन को क्या देखना है कि वहां के कॉन्टेक्स्ट को देखना भी जरूरी है। ये विड्रो विल्सन ने अपने अमेरिकन कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में बोला था, ठीक है। तो बाद में उसको भी अपन देखते हैं कि उसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। डेमोक्रेटिक सिस्टम, मोनार्कियल सिस्टम देख ही लिए। फिर आता है पब्लिक ओपिनियन, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग है, नॉलेज है, मैनिपुलेट कर सकता है, तो पावरफुल होता है। इसलिए अपन क्या देख रहे हैं कि इसमें लोगों का, सिटीजन का जो लिबर्टी है थ्रेटन हो सकता है ना। पब्लिक ओपिनियन को इसलिए कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। कंट्रोल कैसे होगा कि भाई हम डेमोक्रेटिक कंट्रोल लेके आएंगे। डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोग इंपावर होता है, लोग अपने द्वारा चुन के पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव भेजते हैं। तो अगेन ही वाज टॉकिंग ऑफ पब्लिक कंट्रोल, है ना। तो आज के कॉन्टेक्स्ट में सोशल मीडिया इंपॉर्टेंट हो गया कि जैसे पॉलिसी मेकिंग है, पॉलिसी कहीं भी अगर मान लो कोई एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर हो रहा है, तुरंत पुलिस, है ना, पब्लिक ह्यू एंड क्राई होता है तो, और गवर्नमेंट विल हैव टू एक्ट। पब्लिक ओपिनियन आज के कॉन्टेक्स्ट में भी इंपॉर्टेंट हो गया। फिर बिजनेस लाइक अप्रोच है, बिजनेस लाइक में क्या है, माइंड योर बिजनेस, ये सारे टर्म सर ने लिखाया है। सेम थिंग, डोंट, मतलब 2-3 पॉइंट आपको ऐसे याद करना है, इसमें से 2-3 टर्म भी अगर आपके पास है तो यू कैन जस्ट एलोबरेट ऑन बिजनेस लाइक अप्रोच। बाद में आता है कि ये बिजनेस लाइक अप्रोच है ना, इसको लिंकेज का आता है कि जो नियो टेलरिज्म या टेलरिज्म से कैसे इसको कनेक्ट करें, टेलर के आइडियाज कैसे लिंक करें, या एनपीएम से इसको कैसे कनेक्ट करें, है ना। तो ये सारा बिजनेस लाइक अप्रोच में टेलर और एनपीएम को हमें ध्यान में रखना है कि उससे कनेक्ट कैसे किया जा सकता है बिजनेस लाइक अप्रोच या क्लासिकल थिंकर का जो आइडिया था। ये 3-4 कंपैरिजन पर्सपेक्टिव आपको बिजनेस लाइक अप्रोच से लिंक करना है आइडियाज को, ठीक है। तो इसमें, है ना, तो ज्यादा कुछ नया नहीं है, बस, है ना, फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज फील्ड ऑफ बिजनेस। लेकिन इसको हम कंप्लीटली एग्री भी नहीं करेंगे। कौन काउंटर इसको करता है, एनपीए, है ना, एनपीए हो गया या एनपीएस है,
न्यू पब्लिक सर्विस या गुड गवर्नेंस है, ये सब आइडियाज क्या है, कहीं ना कहीं बिजनेस लाइक अप्रोच को मतलब लिमिटेशंस को हाईलाइट करता है कि भाई बिजनेस लाइक अप्रोच कंप्लीटली हम बिजनेस लाइक अप्रोच नहीं कर सकते हैं। पब्लिकनेस है, पब्लिक सर्विस है ना, ऑल पीपल आर नॉट इक्वल, देयर इज लॉट ऑफ, है ना, इक्विटी कंसर्न भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बिजनेस में क्या होता है, पैसा दो और काम होगा, यूजर फी होगा, है ना, वहां पे है ना एफिशिएंसी इनएफिशिएंसी, कई बार कई स्कीम्स है ना, जैसे मान लो करप्शन है, लीकेज है, तो बिजनेस वाला क्या बोलेगा, ये तो वेस्टेज ऑफ रिसोर्स है, इसको बंद करो, पब्लिक सेक्टर जितने बंद करो, ये लॉस मेकिंग कंपनी, हम नहीं काम करेंगे। तो बिजनेस लाइक वो होता है, लेकिन पब्लिक सेक्टर में इतने सारे लोग को जॉब दिया गया, तो वो हम उसको रिलेट करेंगे, ठीक है। फिर अब ये जो क्वेश्चन आता है कि भाई वुडरो विल्सन इज कंसीडर्ड एज ए फाउंडिंग फादर, तो इसके कॉन्टेक्स्ट, उसके पहले कुछ थिंकर्स थे। देखो नॉर्मली क्या होता है ऐसे क्वेश्चंस में, दो इट हैज बीन आस्क्ड, बट एक बार आ गया अननेसेसरी, यू डोंट हैव टू रिमेंबर मेनी थिंकर्स। तो ओरिजिनल जो अपन, ये तो सबको पता होता है ना, पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ते हैं या जीएस में भी पढ़ते हैं कि भाई एरिस्टोटल है, कौटिल्य है, मैकियावेली है, ये तो पढ़ते ही है। इन प्रैक्टिस तो एडमिनिस्ट्रेशन, सिविलाइजेशन, यानी जब से सिविलाइजेशन आया तब से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन है। इन प्रैक्टिस थ्योरी में हम देखते हैं कि कुछ थिंकर्स थे, एक दो थिंकर के नाम आपको याद करने हैं। जैसे अमेरिका कॉन्टेक्स्ट में ना एक बोलता है कि भाई ये टर्म पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैमिल्टन ने दिया था, और जेफरसन का जो आता है स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन। तो थॉमस जेफरसन जो बिग ब्यूरोक्रेसी या जो है ना स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेसी की बात करेगा, उसके सपोर्टर के फॉर्म में थॉमस जेफरसन है। अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने टर्म दिया था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का जब बात करेंगे तो हम जॉर्ज जिंके का टर्म यूज करते हैं, तो ये पर्शियन एडमिनिस्ट्रेटर था। इसमें अपने को क्या करना है कि यहाँ पे जरूरी नहीं कि आपको सारे थिंकर का नाम पता होना चाहिए। आपको एक तो ये तो सब कॉमन है, सबको याद ही रहता है, इसमें आपको एक दो याद करने हैं, एक दो टर्म्स, ताकि थिंकर्स बिफोर का कॉन्टेक्स्ट, और बाकी हम क्या कर सकते हैं उसमें का कॉन्टेक्स्ट दे सकते हैं, ठीक है। उससे भी डायकोटोमी का कॉन्सेप्ट पहली बार विल्सन, लेकिन ये जो टर्म है ब्लंसली, इसका जो डायकोटोमी पहली बार इसने बात किया कि सेपरेट करो। तो अब ये जो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें ना ये क्वेश्चन आ चुका है, अब अननेसेसरी इसको इतना याद होता नहीं है लोगों से, और आंसर शीट में लिखने का टाइम भी नहीं होता है, क्योंकि देयर आर लिमिटेड वर्ड्स। सो यू डोंट एक दो याद करना है, कोई भी है ना, जिनके याद कर लो, या फिर हैमिल्टन का है ना आइडिया यूज कर लेंगे, या थॉमस जेफरसन का। ये जो स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन, आजकल डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन की बात की है, तो थॉमस जेफरसन को वहां से भी लिंक, तो यूएसए के अंदर जो स्टार्टिंग फेज था, स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेसी, टॉप डाउन अप्रोच, सेंट्रलाइज ब्यूरोक्रेसी या वेबेरियन ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में जेफरसन ने जैसा वहां पे आता है, भाई यूएसए के अंदर स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेसी क्यों आया था, उसके प्रोपोनेंट कौन थे, अपोनेंट में कौन कौन थे, तो ये सारा चीज हम डिबेट में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब लेकिन क्या होता है कि अब क्रिटिसाइज करना है, भाई ये सारे थिंकर आए, लेकिन किसी ने सेपरेट डिसिप्लिन की बात नहीं किया, किसी ने स्पेशलाइज स्टडी का बात नहीं किया, और जिस तरीके से वुडरो विल्सन ने क्वेश्चंस उठाए थे, दैट हैज लेड द फाउंडेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, दिस इज व्हाट द कंटेंट सेज, है ना। तो इसमें आपको वुडरो विल्सन ने जो भी थिंकर्स, उसके पहले जितने भी सेपरेट डिसिप्लिन का बात अपन वुडरो विल्सन के टाइम ही, वुडरो विल्सन ने बहुत ही स्ट्रांगली आर्ग्यू किया था, फोर्सफुल आर्गुमेंट था कि वी शुड हैव द सेपरेट डिसिप्लिन, कि देयर शुड बी सेपरेट डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन क्यों चाहिए, है ना, ही फोकस्ड ऑन थ्री एस्पेक्ट, व्हाई देयर शुड बी अ सेपरेट डिसिप्लिन एंड व्हाट द डिसिप्लिन शुड डू, व्हाट मतलब कि भाई इसको थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स बिल्ड करने हैं। सेपरेट डिसिप्लिन क्यों चाहिए, ताकि हम चैलेंजेस को ओवरकम करें पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन का, है ना। तीसरा है इंपेरिकल मेथड अडॉप्ट किया जाए थ्योरी बिल्डिंग में, कैसे करना, हाउ टू बिल्ड द थ्योरीज। तो थ्री एस्पेक्ट, तीन क्वेश्चन उठाया उन्होंने, फिर उसके अंदर कई सारे एस्पेक्ट को उन्होंने, तो इसलिए उसको हम लोग फाउंडिंग फादर बोलते हैं। तो आर यू ऑल जस्टिफाइड, यू नो, इज इट जस्टिफाइड टू से द पब्लिक, यू नो, वुडरो विल्सन एज द फाउंडिंग फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यू नो, यू कैन आल्सो हैव द डिबेट इन योर माइंड कि क्या सच में, है ना, उसको फाउंडिंग फादर बोलना सही है या गलत, है ना, है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है ना। दिस इज हाउ यू नो ब्रेन स्टॉर्म, या तो देखो आर्ग्यूमेंट क्या क्या क्यों जरूरत है, चैलेंजेस, इंप्लीमेंटेशन क्या करना है, और ये डायग्राम आपको, है ना, इस फ्लो चार्ट या इस तरह का आप प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो यू डोंट हैव टू राइट दिस कहानी, है ना, पूरी कहानी को इतना लिखने की जरूरत नहीं, यू कैन जस्ट मिनिमाइज इट एंड कट शॉर्ट एंड जस्ट यू कैन फोकस कि इस तीन टर्म्स को अगर आपने ध्यान से पढ़ा, तो व्हाई डू वी नीड द डिसिप्लिन, व्हाट द डिसिप्लिन शुड डू एंड हाउ दोस, यू नो, थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स कैन बी बिल्ड, एम्पेरिकल स्टडीज और पॉजिटिविज्म। इसी का आधार पे देखते हैं कि बाद में ना क्लासिकल थिंकर्स के जितने भी हैं, मोस्ट ऑफ द थिंकर्स, यू नो, दे विल ट्राई टू फॉलो अप द, यू नो, डेवलप दिस प्रिंसिपल्स एंड टूल्स एंड टेक्निक्स, जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स है ना, उसके बारे में देखते हैं। फिर इम्पैक्ट एंड रेलेवेंस, एनीथिंग टू आस्क, यू नो, बिफोर वी प्रोसीड।
Yeah, anything to discuss or you want to share something? Is the pace okay? है ना? Are you all able to get it? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके है ना? तो बीच में अगर कुछ आ रहा है कि कुछ नए कंटेक्स्ट है या कुछ है ना, इफ यू आर एबल टू ब्रिंग आउट सम क्वेश्चंस आल्सो, यू कैन यू नो ऐड ऑन कि कुछ क्वेश्चंस है या डाउट है इससे रिलेटेड, यू कैन ऑलवेज आस्क, अनम्यूट एंड देन आस्क। ओके, तो अब देखो इम्पैक्ट एंड रेलेवेंस, ये सेक्शन हमेशा ना इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चंस आते हैं जब भी आपको ना। देखो तीन पर्सपेक्ट है, कंट्रीब्यूशंस और उसका रेलेवेंस। तो कंट्रीब्यूशंस, कॉन्टेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन एंड रेलेवेंस, ये तीन अगर किसी भी थिंकर का, किसी भी मॉडल्स का अगर आपको पता है तो यू कैन राइट एनी आंसर। मोस्ट ऑफ द आंसर्स आर बीइंग आस्क्ड ऑन दिस एस्पेक्ट ओनली। तीन एस्पेक्ट है, कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट हो गया, और कंट्रीब्यूशंस क्या है, और उसका सिग्निफिकेंस क्या, रेलेवेंस क्या है। ठीक है, तो सेपरेट डिसिप्लिन बात किया। तो आज के कॉन्टेक्स्ट में है ना, जैसे इंडिया में क्या पॉलिसी फेलियर है, तो डू यू आल्सो नीड मेनी टाइम्स एस्पिरेंट्स आल्सो हैव दैट, मेनी ऑफ द टॉपर्स व्हेन आई इंटरेक्टेड दे वर आल्सो फीलिंग कि हाँ सर हमारे देश में भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए सेपरेट डिसिप्लिन तो नहीं है। तो कहीं है ना, दे आर आल्सो पजल कि कहीं ऐसा ये भी तो फैक्टर नहीं है कि हम एडमिनिस्ट्रेशन पे ध्यान नहीं दे रहे, इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान नहीं दे रहे। तो शुड वी आल्सो make the public administration as a one of the subject in the academic in the universities? Do we need, है ना? तो what are the initiative taken by the government? जैसे IIPA है, Indian Institute of Public Administration, there are only few university, लखनऊ यूनिवर्सिटी है, चंडी, उसके तुम्हारा जामिया है, कुछ यूनिवर्सिटी इग्नू है, तो बहुत ही लिमिटेड, या जयपुर, तो कई सारे लिमिटेड यूनिवर्सिटी में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाया जा रहा है। तो अगेन इट आल्सो पजल अस कि कहीं ये तो जो इम्प्लीमेंटेशन का प्रॉब्लम इंडिया में देख रहे हैं, इज इट नॉट लिंक टू द क्वेश्चन दैट विड्रो विल्सन वाज आस्किंग, है ना? अगेन द रिलेवेंस ऑफ विड्रो विल्सन, यू कैन रियलाइज इट कि भाई सेपरेट डिसिप्लिन होना चाहिए, थ्योरी बिल्डिंग। हम तो क्या कर रहे हैं, वेस्टर्न थ्योरी प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, लेकिन कॉपी पेस्ट से क्या हो रहा है, इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। इकोलॉजिकल कंडीशंस अलग है, तो थ्योरी यहाँ के आधार पे बिल्ड होना चाहिए, है ना? जो बाद में रिक्स और ये सब आया था, उसने भी आइडिया दिया। हम लोग क्या देख रहे हैं कि डिस्पाइट सो मच विडो विल्सन्स आइडिया आर स्टिल रिलेवेंस इन द कंटेम्परेरी टाइम। विल्सन्स का सबसे पहले क्या है ना, आपको इन्फ्लुएंस देखना है, हाउ द आइडियाज ऑफ विडो विल्सन हैज इन्फ्लुएंस द थ्योरी बिल्डिंग, है ना? तो उसमें क्लासिकल अप्रोच है, एनपीए है, एनपीएम है, या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, है ना, कि विडो विल्सन का रेलेवेंस जब भी आता है तो आपको रिलेट करना है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए डिसिप्लिन और इन द प्रैक्टिस एंड इन थ्योरीज। प्रैक्टिस में हम लोग थ्योरी में क्या क्या देखे, क्लासिकल अप्रोच है, एनपीएम है, या तुम कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, एनपीएम मॉडल है। तो ये सब में क्या देख रहे हैं कि बिजनेस लाइक अप्रोच या विल्सन्स के जो ओपिनियन थे, आइडियाज थे, वो यूज हो रहा है प्रैक्टिस में। अभी जितने भी ARC1, ARC2, कई सारे रिफॉर्म्स, दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द विड्रो विल्सन्स आइडिया। तो दिस इज हाउ यू रिलेट टू द करंट कॉन्टेक्स्ट। विड्रो विल्सन रेलेवेंस है, बिल्कुल है। क्यों है कि इंडिया का देखो केस दिया हुआ, सर ने भी दिया कि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, रिजल्ट ओरिएंटेड, लेटरल एंट्री का बात हमने किया। तो ये तो बिजनेस लाइक अप्रोच आजकल क्या है ना, गवर्नमेंट है ना, नो बिजनेस आजकल तो, लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज हुआ है कि हम गवर्नमेंट को मिनिमाइज करना है, मिनिमम इंटरफेरेंस होना चाहिए, आउटसोर्स करो, कॉन्ट्रैक्ट आउट करो। तो मॉडल्स, ये जो स्कोप हम लोग पढ़ते हैं ना, स्कोप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये किस प्रकार चेंजिंग है, तो वो भी कॉन्टेक्स्ट आपको पैरेलली पता होना चाहिए। ठीक है, तो फिर क्रिटिसिज्म है। क्रिटिसिज्म नॉर्मली है ना, ज्यादा क्रिटिसिज्म नहीं होता है जो, हाँ, एनीथिंग टू आस्क? ओके, तो बेसिकली हम लोग क्या देख रहे हैं कि विडो विल्सन का जो कंसेप्ट है, एक तो कंसेप्ट ऑफ डायकोटोमी है ना, सबसे ज्यादा अगर क्रिटिसिज्म आता है, क्योंकि है ना, डीएनए तो बन गया है ना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एज ए सेपरेट डिसिप्लिन बनाने में डायकोटोमी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन इसके कारण कई सारे लिमिटेशन भी आ गया डिसिप्लिन पे, कि पॉलिसी मेकिंग में ज्यादा रोल नहीं आ गया, है ना? तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स थे, तो अब वहां पे देख रहे हैं कि बाद में रियलाइज हुआ कि ये पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन का रेसिप्रोकल रिलेशन है। तो हमने 4-5 थिंकर देखा, फ्रैंक मैरिनी है, या मोहित भट्टाचार्य, उन्होंने भी रिव्यू किया था कि विड्रो विल्सन हिमसेल्फ रिव्यूड हिज आइडियाज ऑफ डायकोटोमी, कि है ना, अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन को अलग कर दिए तो इट विल बी रोब्ड ऑफ इट्स ट्रू नेचर। तो दैट वाज अ स्टेटमेंट मेड बाय द विड्रो विल्सन फ्यू इयर्स लेटर, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का एक्सपीरियंस नहीं था। तो समटाइम्स इट इज आस्क्ड डायकोटोमी वाज ए नेव कॉन्सेप्ट, डू यू थिंक इज इट पॉसिबल टू कंप्लीटली सेपरेट? तो रेसिप्रोकल रिलेशन है, निकोलस हेनरी का जो ट्वाइलाइट जोन है, फ्यूजन मॉडल है एडमिनिस्ट्रेशन का, तो हम लोग देख रहे हैं कि दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करता है ना? तो एक तो कॉन्सेप्ट आता है पॉलिटिसाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और दूसरा होता है या ब्यूरोक्रेटाइजेशन ऑफ पॉलिटी, बोलते हैं अपन, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी।
तो रिक्स ने आइडिया क्या दिया, ब्यूरोक्रेसी का पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है ना। और विड्रो विल्सन क्या बात करेगा, जो स्टार्टिंग में ब्यूरोक्रेटाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, तो वहां पे टेक्निकलिटी आ रहा है। तो जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आएगा, ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है बहुत ज्यादा टेक्निकल हो रहा है ना, रूल ओरिएंटेड हो रहा है। तो ये सारा टर्म्स रिलेटेड है। तो डायकोटोमी रिजेक्ट होगा तो नए सारे कई सारे स्कूल्स राइज होते हैं, पब्लिक पॉलिसी स्कूल है ना, सर पब्लिक। हाँ हाँ प्लीज। सर ब्यूरोक्रेटाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का एग्जैक्ट मीनिंग थोड़ा सा बता। हाँ देखो, इसका ना दो मीनिंग होता है, एक पॉजिटिव मीनिंग है, एक निगेटिव मीनिंग। ठीक है, तो पॉजिटिव में क्या देखते हैं, ब्यूरोक्रेटाइजेशन ऑफ पॉलिटी, कई सारे टेक्निकल डोमेन है ना, टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व होता है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्या होता है, लेमैन होता है। तो हम पॉजिटिव में क्या देखते हैं, क्योंकि है ना ब्यूरोक्रेट्स पॉलिटिशियंस आर लेमैन अमेटियर एडमिनिस्ट्रेटर्स, इसलिए ब्यूरोक्रेट्स आर एम्पावर्ड टू टेक द डिसीजन, है ना। जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्यों आता है, तो वहां पे क्या देख रहे हैं, ब्यूरोक्रेटाइजेशन ऑफ पॉलिटी हो रहा है। लॉ मेकिंग में भी जो काम लेजिस्लेचर का होना चाहिए, दैट इज बीइंग आउटसोर्स टू द ब्यूरोक्रेट्स, दे आर बीइंग आउटसोर्स टू द एग्जीक्यूटिव। तो इज इट क्लियर, ब्यूरोक्रेटाइजेशन ऑफ पॉलिटी इन द पॉजिटिव सेंस, है ना। उसका निगेटिव भी होता है, टेक्निकलिटी, अननेसेसरी टेक्निकलिटी आ जाता है। जो डीएम डीएसपी देखते इतना ज्यादा पावरफुल है कई सारे स्टेट्स में अभी भी। तो और पॉलिटिकल, क्योंकि है ना जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव लीडर्स होते हैं, है ना, कई लोग इलिटरेट हैं, कई लोग अनअवेयर हैं रूल्स रेगुलेशन का, या लॉ एंड ऑर्डर के बारे में टेक्निकलिटी नहीं पता, सीआरपीसी ने पता, आईपीसी ने, तो क्या होता है वहां पे पुलिस जो है बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। तो दिस इज व्हाट वी मीन बाय ब्यूरोक्रेटाइजेशन ऑफ पॉलिटी। ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें ब्यूरोक्रेट का इन्फ्लुएंस, अभी जैसे उड़ीसा का, अगर इफ यू आर अवेयर ऑफ द इंसिडेंट और एक्टिविटीज ऑफ द उड़ीसा गवर्नमेंट, वहां पे एक आईएएस ने रिजाइन किया अभी। आर यू अवेयर, एनीवन? Yes, sir. उड़ीसा में, Pandian, sir. very nice, Pandian. So he was one of the most powerful bureaucrat in the Patna in the government, and then he was being empowered कि वो जाके कई सारे पॉलिसी इनिशिएटिव अनाउंस कर रहे थे, लोगों से इंटरेक्शन कर रहे थे। तो डायरेक्ट इंटरफेरेंस पब्लिक का ब्यूरोक्रेट के साथ हो रहा था। नॉर्मली आइडियली इट इज नॉट expected in a democratic system कि political executive या political leader should interact or no take the grievances of people. तो he was empowered, over empowered, पावर डेलीगेट किया गया था उसको, कैबिनेट रैंक दिया गया। तो ही वाज डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर टाइप का उसका है ना पोजीशन। अब रिजाइन करके है ना डायरेक्टली ही इज गेटिंग इनटू द पॉलिटिक्स नाउ। तो अगेन दैट इज द ब्यूरोक्रेटाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, है ना। रिजाइन करने से पहले तो ब्यूरोक्रेट था। ब्यूरोक्रेट का काम क्या है, हम विजुअलाइज क्या करते हैं, ब्यूरोक्रेसी इज ए इंस्ट्रूमेंट हैज ओनली वर्क टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसी। दैट वाज द ओरिजिनल आइडिया। यही डायकोटोमी का कॉन्सेप्ट है कि हम पॉलिसी बना के देना और इम्प्लीमेंट कर दो। लेकिन पॉलिटिशियंस लेमैन है, उसको ज्यादा आइडिया नहीं, तो वो आउटसोर्स कर दिया, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बना दिया, है ना। तो ब्यूरोक्रेटाइजेशन ऑफ पॉलिटी हो गया। पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी तो हम पता ही है ना। जैसे मालूम पीएम जो ये एमपी लेड स्कीम्स है, वहां पे क्या है, एग्जीक्यूशन का काम कौन कर रहा है, एमपी एमएलए कर रहा है। तो यानी ब्यूरोक्रेट जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कौन चला रहा है, इम्प्लीमेंटेशन का काम तो है नहीं पॉलिटिशियन का। एमपी एमएलए तो इम्प्लीमेंट करेगा नहीं, लेकिन उसको इंपावर कर दिया, जाओ इम्प्लीमेंट कराओ, है ना। कई सारे स्कीम है, कई सारे ना इनिशिएटिव में देख रहे हैं कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी आ रहा है, यानी पॉलिटिसाइजेशन भी हो रहा है ब्यूरोक्रेसी का। तो अब ये डिसेंट्रलाइजेशन डेमोक्रेटाइजेशन होगा तो कई सारे डायनेमिक कंसेप्ट है। देयर कैन नॉट बी कंप्लीट आइसोलेशन, पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को अलग नहीं कर सकते हैं। देयर आर पॉजिटिव एस्पेक्ट आल्सो, देयर आर नेगेटिव एस्पेक्ट, है ना। इट इज ऑल अप टू द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर, थैंक यू सो मच। इसमें सर एक और जो विल्सन का please. कि मतलब पहले डायकोटमी है उसने खुद रिविजिट किया था, मतलब हम उसके क्रिटिसिज्म में या फिर उसके एवोल्यूशन में डिफरेंट डिफरेंट थिंग, बट हाँ। विल्सन का फिर क्या ट्रांजिशन था सर, पहले उसने क्या बोला और बाद में क्या बोला, ये थोड़ा क्लैरिफाई कर देंगे एक बार? हाँ देखो, विल्सन एक्चुअली है ना 88 में उन्होंने ऐसे लिखा है ना, 88 में जो है ना, उसने 87 या 87 है ना। तो फिर 91 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसे पूछा गया कि डू यू कंप्लीटली एग्री विद द आइडिया ऑफ डायकोटोमी। तो उसको बोला कि है ना दैट इज व्हाट मोहित भट्टाचार्य हैज रिटन इन हिज बुक। इंटरप्रिटेशन जो है, री इंटरप्रिटेशन में देखते हैं कि ही हैज टोल्ड दैट विडो विल्सन हिमसेल्फ रिव्यूड द कंसेप्ट ऑफ डायकोटोमी। बाद में रियलाइज हुआ कि ना कंप्लीट सेपरेशन तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ना पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का डिपेंडेंसी है ब्यूरोक्रेसी पे, पॉलिसी मेकिंग में भी। बाद में जाके विडो विल्सन है ना प्रेसिडेंट भी बनेगा, तो दैट इज लेटर पार्ट। But in the academic debate, when it was raised, when lot of criticism or objections, he was criticized for the idea of dichotomy. So, but he clarified, my objective is only to make the bureaucracy impartial, non-partisan, merit-based system banao.
तो दिस इज व्हाट मोहित भट्टाचार्य रीस्टेट और कमेंटेड ऑन द वुडरो विल्सन्स आइडिया. ठीक है, आर यू एबल टू गेट इट? तो स्टेटमेंट एक है कि if you completely separate administration from the politics, you will rob the administration of its true nature. क्योंकि दोनों तो एज ए होल है ना, एक बॉडी है गवर्नमेंट एज ए, है ना. तो इंटरडिपेंडेंसी ये सब बाद में जो फ्रैंक मैरिनी है, रोजन बोलूम है, या फिर है ना निकोलस हेनरी है, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं सोरा मॉडल ऑफ कॉम्प्लीमेंटैरिटी है. तो ये सब क्या है, क्रिटिसिज्म है ना. वो कहीं ना कहीं वुडरो विल्सन भी कहीं ना कहीं टेसिटली ही एक्सेप्टेड इट नॉर्मली. लेकिन जब हम क्रिटिसिज्म लिखते हैं ना, तो वी डू नॉट कंसीडर द लेटर ओपिनियन, जो बाद में वुडरो विल्सन ओपिनियन लेके आता है कि है ना कि इट्स नॉट बी कंप्लीटली सेपरेट. एक बार डायकोटोमी दे दिया है ना, डायकोटोमी बिकेम द बेसिस, है ना. तो फ्रैंक गुडनाउ है ना, फ्रैंक गुडनाउ हैज रिटन ए बुक इन है ना 1900, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन. ही मेड द डायकोटोमी मोर कॉन्क्रीट. तो हम लोग क्या देख रहे हैं 1900 तक, जब तक वो है ना गुडनाउ का बुक नहीं आया. फ्रैंक गुडनाउ को हम लोग ये भी बोलते हैं फादर ऑफ अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. तो 1900 के पहले क्या था कि एडमिनिस्ट्रेशन एनालिटिकल लेवल पे डिबेट चल रहा था कि क्या एडमिनिस्ट्रेशन को पॉलिटिक्स अलग किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए, एनालिटिकल लेवल पे. और कॉन्क्रीटाइज किया इसने फ्रैंक गुडनाउ इन द बुक पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एंड दैट बिकेम द बेसिस. डायकोटोमी के आधार पे भी देखते हैं जितना भी क्लासिकल थिंकर का डेवलपमेंट 1950s तक का जो एरा था ना, तो that was dominated by the idea of dichotomy, and that has led the इसलिए business like approach, generic view, ये सब जो आता है वो हम लोग देखते हैं 1950s में जो theory development. 50s और 60s में क्या देख रहे हैं, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो भी रिजेक्ट करेगा. पब्लिक पॉलिसी का राइज होता है, पब्लिक स्कूल आता है, पब्लिक पॉलिसी स्कूल, वो भी रिजेक्ट करता है. फिर जाके हम न्यू पब्लिक सर्विस है, गुड गवर्नेंस, सब क्या है, कहीं ना कहीं डायकोटोमी वाला जो आइडिया है उसको हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं या उसको रिजेक्ट करते हैं कि कंप्लीट आइसोलेशन नहीं है. इसलिए सोरा मॉडल ऑफ कॉम्प्लीमेंटैरिटी, ट्वाइलाइट जोन ऑफ निकोलस हेनरी, फ्यूजन मॉडल ऑफ है ना, फ्यूजन मॉडल हो गया, या फिर तुम्हारा मोहित भट्टाचार्य का ओपिनियन, जो सर ने डिटेल में नीचे लिखाया भी होगा, है ना. उसको हम लोग करंट स्टेटस में डालते हैं कि डायकोटोमी का करंट स्टेटस क्या है ना. अभी देखो एग्जांपल इंडिया कॉन्टेक्स्ट में 73rd अमेंडमेंट हो गया. इसमें क्या है ना, डिसेंट्रलाइजेशन कर रहे हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन लोगों के हाथ में दे रहे हैं. यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप हाईलाइट कर रहा है. ये इंडिया का एग्जांपल है. तो हाँ यहाँ सर ने लिख रखा है पॉलिटिक्स शुड इंटरवेन नॉट इंटरफेयर. इंटरफेयर मतलब जब एडमिनिस्ट्रेशन मान लो कि कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है, देयर आर पीपल्स अपोजिशन, देयर आर स्ट्राइक्स, then political party, the political leader, political executive can play the role. It should come as a enabler. Administration को enable करने में intervene करना चाहिए politics को, ठीक है. Not interfere. उसका जो day to day काम है कि ये बिल पास करा दो, ये मेरा ये काम करा दो, that is interference. जो रेगुलर काम है उसमें interfere नहीं करना चाहिए. There should be है ना impartiality, non partisan bureaucratic system. ठीक है. तो विल्सन का जो कॉन्टेक्स्ट था, क्योंकि ही वाज सराउंडेड बाय द कॉन्टेक्स्ट दैट वाज हाईली पॉलिटिसाइज्ड, को स्पॉइल सिस्टम था, तो ही व्यूड द एट स्पॉइल सिस्टम, है ना, तो पॉलिटिसाइजेशन को नेगेटिवली व्यू किया. तो उसने पॉलिटिक्स के नेगेटिव साइड को व्यू किया था. लेकिन आज क्या हम भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जब है ना व्हेन वी फॉर्म द एनजीओ है, सिविल सोसाइटी ग्रुप है, तो ये सब भी तो पॉलिटिक्स ही कर रहे हैं. सिटीजन मीडिया है, तो दे आर आल्सो इन्वॉल्व इन द पॉलिटिक्स. तो ये सब क्या है, ये सब भी तो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर फोर्स कर रहा है. तो पब्लिक कंट्रोल, पब्लिक ओपिनियन, ये सब आ रहा है. तो ही वाज स्केप्टिकल अबाउट द नेगेटिव रोल ऑफ द पॉलिटिक्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन. तो उसको सेपरेट करना इसलिए इंपॉर्टेंट था. तो दैट वाज है ना. लेकिन आज के कॉन्टेक्स्ट में पॉजिटिव इन्फ्लुएंस भी होता है ना. जैसे मान लो कि अलग अलग, जैसे मान लो दिल्ली है, आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट में आया, या मोदी गवर्नमेंट 2014 में आया, या फिर कई सारे और गवर्नमेंट, अलग अलग पार्टी के गवर्नमेंट जब नहीं पहले आते हैं, तो है ना, तो ब्रिंग्स आउट लॉट ऑफ डेवलपमेंट. देयर इज लॉट ऑफ न्यू एनर्जी दैट इज चैनलाइज इनटू द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, है ना. इसलिए हम लोग ऐसा नहीं कंप्लीटली स्केप्टिकल नहीं हो सकते पॉलिटिकल सिस्टम को लेके. देयर आर सम पॉजिटिव एस्पेक्ट आल्सो, ठीक है. तो क्रिटिकल इवैल्यूएशन हम जब ऐसे का करते हैं तो उसमें वही देखते हैं सेपरेशन में, है ना. तो अब जैसे उन्होंने क्वेश्चंस किया कि पॉलिटिकल क्वेश्चंस आर नॉट एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चंस, तो दैट वाज वैलिड इन दिस कॉन्टेक्स्ट, है ना. आज के कॉन्टेक्स्ट में उसको हम लोग है ना देखते हैं कि सबका भी क्रिटिसिज्म है, ठीक है. कैन नॉट बी डाइवर्स फ्रॉम पॉलिटिक्स, ठीक है. दिस इज व्हाट इज द स्टेटमेंट, है ना. लेटर ऑन जब बाद में हुआ था, ऐसे में तो उठाया था, लेकिन बाद में उसको रिव्यू करना पड़ गया, ठीक है. तो अब देखो उसका मेजर जो कंट्रीब्यूशन आता है ना, फ्रैंक गुडनाउ का जो बुक आएगा पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज है ना 1900 में जब किताब आया ना, उसके बाद हम देखते हैं कि डायकोटोमी बहुत ज्यादा कॉन्क्रीटाइज हो गया, ठीक है. फिर एथनोसेंट्रिसिज्म
जो कंपैरेटिव स्टडी हमने क्या देखा, वुड्रो विल्सन का कंसर्न क्या था, सेपरेट डिसिप्लिन हो लेकिन उसका काम क्या होना चाहिए, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को रिफॉर्म करना है, इसलिए हम उसको बोलते हैं एथनोसेंट्रिसिज्म। बाद में जाके 1950 60 के बाद हम लोग क्या देखते हैं, एथनोसेंट्रिसिज्म कम करने का बात हो रहा है ना, वी अप्रिशिएट इट शुड सेड इट्स एथनोसेंट्रिसिज्म। फिर डायकोटोमी है, उसको डीएनए ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन राइट वाल्डो बोलता है। तो डायकोटोमी को बहुत सारा कंटेंट आ गया है ना। तो व्हाट यू कैन प्रोपोनेंट अपोनेंट और जो री इंटरप्रिटेशन वाले जो थिंकर्स है ना, क्योंकि एक दो है ना 100-200 वर्ड में लिखना होता है, तो ज्यादा स्कोप नहीं है कि यू कैन नॉट गो फॉर सो मच एलोबरेशन। कुछ आइडिया होना चाहिए कीवर्ड्स कंट्रीब्यूशंस में और उसके क्रिटिसिज्म में। अब जो डायकोटोमी है या एथनोसेंट्रिसिज्म है उसको हाईलाइट कर दिया, उसके काउंटर्स को हाईलाइट करते हुए बाद में रेलेवेंस दिखाएंगे। डायकोटोमी का जो कंक्लूजन आता है ना, ये कंक्लूजन है ना सर ने काफी अच्छे से लिखा है, इवन उसको हम क्रिटिसाइज करते हैं लेकिन अभी आज के कॉन्टेक्स्ट में रेलेवेंट क्यों, क्योंकि जितने भी हम देखो सोरा है, रोजनब्लूम है, तो उसके आइडिया को किस प्रकार आज के कॉन्टेक्स्ट में है ना मॉडिफाई किया या रीइंटरप्रेट किया गया, इसको हम लोग रिसर्जेंस ऑफ डायकोटोमी आइडिया भी बोलते हैं। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन कंक्लूड अबाउट द कॉम्प्लेक्स रिलेशन है, उसको बाद में अलग अलग लोगों ने हाईलाइट किया तो दैट वी नो इट। ठीक है, तो अब ये ना क्वेश्चन आता है रेसिप्रोकल रिलेशन है, इन्फ्लुएंस कैसे कर रहा है पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन को, एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिक्स को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है। जैसे उड़ीसा का एग्जांपल है ना, उड़ीसा का एग्जांपल ले सकते हैं अपन, वहां पे किस प्रकार है ना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एम्पावर्ड था। तो अब डिजास्टर मैनेजमेंट आता है ना, या फ्लड आ गया, तो वहां पे क्या है ना कि एडमिनिस्ट्रेटर, ब्यूरोक्रेट्स या एनडीआरएफ एजेंसी, ये सब का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो है ना रेसिप्रोकल रिलेशन है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस भी है कि हम देखते हैं कि हाँ ओवरलैपिंग है, ये है, लेकिन दोनों का कुछ डिस्टिंक्ट स्फेयर भी है। ठीक है, तो इट इज हार्ड गेटिंग हार्डर टू रन द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने क्वेश्चन दिया, क्यों दिया, क्योंकि फोकस ही नहीं था, इम्प्लीमेंटेशन पे कोई ध्यान नहीं, सोसाइटी कॉम्प्लेक्स हो रहा है, चैलेंजेस बढ़ता जा रहा है, लेकिन अभी तक सारा हम आइडियोलॉजी के नशे में है ना। वो पॉलिटिकल थिंकर्स दे वर जस्ट कंटेम्पलेटिंग ऑन द कि कैसा सिस्टम होना चाहिए, डेमोक्रेसी कैसा होना चाहिए, पॉलिसी बेस्ड बनाएंगे, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन पे कोई ध्यान नहीं। इसलिए वुड्रो विल्सन को है ना सेपरेट डिसिप्लिन का डिमांड करना पड़ा। उसने बोला फील्ड ऑफ बिजनेस है, तो है ना इस बिजनेस पॉलिटिक्स का जो हरीनेस टाइप उससे दूर जाना है। इसका मतलब क्या है, ये तो है ना बिजनेस लाइक अप्रोच को मेंशन करना है स्क्वायर सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन आज में इतना रेलेवेंस नहीं है, इसको रिजेक्ट किया गया। लेकिन टेस्ट जो एनपीएम और ये सब आता है ना, इसको आइडियाज को अपन देखते हैं वापस से, कई सारे आइडियाज को रिवाइव करते हैं, विल्सन इसलिए रेलेवेंट हो जाता है। ठीक है, तो अब दूसरा है विल्सन कंसीडर द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सिनोनिमस विद द फील्ड ऑफ बिजनेस, एग्जामिन करना है। अब उसने जब पब्लिक कंट्रोल का बात किया तो विल इट बी पॉसिबल, पब्लिक कंट्रोल तो हम तो बिजनेस में करते नहीं है ना, कस्टमर कंज्यूमर ये सब वाला होता है, यानी बिजनेस लाइक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम चाह रहा था उसमें, मतलब ही वाज नॉट कंसर्न अबाउट द प्रॉफिट मोटिव, पब्लिक मोटिव है, सर्विस करना है, लेकिन ही वांटेड टू ब्रिंग द बिजनेस लाइक अप्रोच इनटू द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, उसका क्योंकि एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस है। लेकिन यहाँ पे उसने कल्चरल लेंस का बात किया, सोशल इथोस का बात किया, पब्लिक ओपिनियन का बात किया। इसलिए हम लोग देखते हैं एग्जामिन क्यों किया, कि एग्जामिन करना है वेदर ही इज है ना, कैन वी नैरो हैव द नैरो व्यू ऑफ दिस स्टेटमेंट, है ना। तो ऐसा नहीं है, उसने पब्लिक ओपिनियन का बात किया, सोशल इथोस का बात किया, कल्चरल लेंस का बात किया, दैट मींस देयर इज ही वाज आल्सो कंसर्न ऑफ द पब्लिकनेस ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, बाद में एनपीए सब जाके इसको और डिटेल में एलोबरेट करता है, एनपीएस है। तो ये क्वेश्चन देखो आ चुका है ना, इवन आफ्टर 135 ईयर। तो इसको अटेम्प्ट करने का तरीका वही है कि भाई कंट्रीब्यूशंस क्या है और आज के कॉन्टेक्स्ट में किस प्रकार वो इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प किया, और आज के कॉन्टेक्स्ट में भी क्यों इंपॉर्टेंट है। दिस इज हाउ यू हैव टू कंक्लूड इट। ठीक है, डायकोटोमी को अपन डिटेल में काफी डिस्कस कर लिए कि डायकोटोमी आया था, 40 तक रहेगा, फिर है ना रिजेक्ट किया जाएगा, और फिर बाद में रिसर्शन है या फिर री इमर्जेंस या री इंटरप्रिटेशन है। ये चारों थिंकर इंपॉर्टेंट है, चारों के ओपिनियन। री इंटरप्रिटेशन मतलब वुड्रो विल्सन ने खुद रिव्यू किया रिलेशनशिप को, है ना, ही वाज नॉट अवेयर। उसके बाद है ना क्या उसका मतलब था वो भी अपन देखते हैं कि कई है ना उसको अच्छे से नहीं समझा गया, तो बाद में क्या रिव्यू किया, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं री इंटरप्रिटेशन में। तो 89 में है ना जब दोबारा उसने मीटिंग किया तो उसमें बोला है ना, तो ये मोहित भट्टाचार्य बोलता है नॉर्मली कि डायकोटोमी को उन्होंने खुद ही रिव्यू किया था। ठीक, तो और फिर फ्रैंक मार्टिन है ना, मार्टिन इसने भी कहा कि रिव्यू किया था, तो उसने फ्यूजन की बात किया, ही टॉक्ड अबाउट फ्यूजन। ठीक, तो बस आपको एक आइडिया क्या रखना है, मार्टिन, फ्रैंक मार्टिन का फ्यूजन वाला आइडिया कि एडमिनिस्ट्रेशन का फ्यूजन है। डेविड रोजनब्लूम है, तो उस रोजनब्लूम का जो आइडिया था कि भाई अल्टीमेटली ब्यूरोक्रेसी क्या होना चाहिए, नॉन पार्टीशन होना चाहिए, इम्पार्शियल होना चाहिए, ए पॉलिटिकल। दिस वाज ओरिजिनल आइडिया ऑफ वुड्रो विल्सन। तो दिस इज व्हाट जस्ट रिमेंबर द कीवर्ड्स।
उसकी कहानी सबको पता है ना, उतना टाइम भी नहीं होता है लिखने का। तो इंटरप्रिटेशन में कीवर्ड्स आपको ये ध्यान रखना है, थिंकर, और उसने जो आइडियाज दिया है कि भाई वुडरो विल्सन को इंटरप्रीट कैसे किया उसने, है ना, कि भाई वुडरो विल्सन का ऑब्जेक्टिव तो यही था कि एफिशिएंट सिस्टम हो, ए पॉलिटिकल हो, नॉन पार्टीसन हो, इम्पार्शियल होना चाहिए, मेरिट बेस्ड सिस्टम होना चाहिए, एस्क्वाल सिस्टम को खत्म करना है। दिस इज व्हाट द डेविड रोजेनब्लूम सेज अबाउट डायकोटोमी कॉन्सेप्ट। निकोलस हैंडी का जो इवोल्यूशन है उसमें भी उसने बात किया कि जो ट्वाइलाइट जोन का कॉन्सेप्ट है ना, तो वो हम लोग देखते हैं कि निकोलस हैंडी देते हैं। उसके बाद हम लोग थिंकर्स जैसे पब्लिक पॉलिसी स्कूल है, ये भी क्या करेगा, ये कहेगा एडमिनिस्ट्रेशन का रोल तो पॉलिसी में भी है, और एनपीए है, पब्लिक चॉइस, जो अपन ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। ये सब क्या है, डायकोटोमी को रिजेक्ट करता है। यानी 1950s के बाद जो भी डेवलपमेंट, 50s और 60s के बाद जो डेवलपमेंट है, उसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, मोस्टली द आइडिया ऑफ डायकोटोमी इज बीइंग रिजेक्टेड। ठीक है, तो अब हम लोग, हाँ तो लेकिन क्या है कि जैसे कोर एंड पेरिफेरी इज द मोर एप्ट डिस्क्रिप्शन है ना, जो डॉइट वाल्डो ने बोला है ना, कोर एंड पेरिफेरी। तो ये इंपॉर्टेंट है कोर, क्योंकि देयर आर डिस्टिंक्ट। अगर मान लो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल साइंस सेम होता तो है ना, ऑप्शनल अलग से होने का कोई जरूरत नहीं था। यानी देयर आर सम कोर एस्पेक्ट जो सिलेबस है ना, जब हम कोर और पेरिफेरी की बात करते हैं ना, तो व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड, कोर मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर 1 का सिलेबस है ना, उसके जितने जैसे पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, तो वो तो पॉलिटिकल साइंस में अपन नहीं पढ़ते है ना। या फिर जो थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बिहेवियर, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, ये सब तो कोर ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आता है। और पेरिफेरी में हो गया जो इंटरफेस है, जैसे मान लो पब्लिक पॉलिसी है, पीएसयू है, प्लान्स एंड प्रायोरिटी है, उसमें इकोनॉमिक्स से ओवरलैपिंग है, पॉलिटिकल साइंस से है, सोसाइटी से है, तो कई जगह ओवरलैपिंग है, इंटरफेस होता है। ठीक है, ओवरलैपिंग एरिया को हम लोग ट्वाइलाइट जोन है ना, निकोलस हैंडी ट्वाइलाइट जोन बोलता है कि पॉलिटिक्स में क्या देखा है, पॉलिटिक्स डेमोक्रेसी है तो पॉलिटिक्स है ना, और एफिशिएंसी एडमिनिस्ट्रेशन का मेन कंसर्न एफिशिएंसी है, जो विड्रो विल्सन ने बोला था। तो इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप होता है। ठीक है, सोरा मॉडल ऑफ कॉम्प्लीमेंटैरिटी, अगेन यू आर गोइंग टू यूज दिस, यू नो, वन ऑफ द मोस्ट कंटेम्पररी व्यू ऑन द डायकोटोमी, कि रेसिप्रोकल रिलेशन है, ऑटोनोमस भी है ना, तो कॉम्प्लीमेंटैरिटी है। ठीक है, दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेड व्यू। तो ये सारा ओपिनियन आपको डायकोटोमी क्वेश्चन में 3-4, मतलब 2 से 3 थिंकर भी अगर आपने कोट कर दिया, सोरा कोट कर दिया, निकोलस हैंडी कोट कर दिया, तो यू नो सोरा मॉडल ऑफ कॉम्प्लीमेंटैरिटी, ट्वाइलाइट जोन ऑफ निकोलस हैंडी। ठीक है, 2 आइडिया को भी अपन कोट कर लिए, तब भी आपके आंसर्स में। तो ऐसा नहीं कि आपको 4-5 थिंकर्स याद करना है, 1-2 थिंकर्स आपको याद करना है और उसको यूज करना है डायकोटोमिक आइडिया को रिजेक्ट करने के लिए या उसको आर्ग्यूमेंट्स को प्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो सिटीजन, देखो आजकल कॉन्टेक्स्ट में सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोगों का प्रोएक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये सब क्या है कि अब एडमिनिस्ट्रेटर को भी एम्पावर करना पड़ेगा, है ना, और वहां पे कई जगह एडमिनिस्ट्रेटर खुद डिसीजन ले रहा है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है या डेलीगेटेड अथॉरिटी, तो वो हम लोग को देना पड़ेगा। पॉलिटिकल टाइम टू टाइम क्या है ना कि डायरेक्शंस दिया जाता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के द्वारा, लेकिन सिटीजन एडमिनिस्ट्रेशन को भी एम्पावर करना है, दोनों को टीम इंडिया की तरह काम करना है, जैसे प्रगति इनिशिएटिव है ना, या 73rd 74th हो गया, ये सारे एग्जांपल्स ना काफी इंपॉर्टेंट है ना। हाउ यू आर गोइंग टू गेट द मार्क्स, द एग्जांपल्स है ना, एग्जांपल्स जो करंट इनिशिएटिव है उससे, एमपीलेट देखो है, दिशा है, पॉलिसी मेकिंग, स्मार्ट सिटी मिशन, सब में क्या है ना, दोनों वर्क है ना, एक साथ काम कर रहे हैं, पॉलिटिक्स भी और लोकल बॉडी भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी है, प्राइवेट सेक्टर भी है, गवर्नमेंट भी है, तो एवरीवन इज वर्किंग टुगेदर, सिविल सोसाइटी को भी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, तो दे आर वर्किंग एज ए टीम। ठीक है, फिर रेसिप्रोकल रिलेशंस हो गया कि भाई लोगों का जो ग्रीवेंस है, जो एनपीए भी हाईलाइट करता है कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन शुड बिकम मोर रेलेवेंट टू द सोसाइटी, रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स ऑफ सोसाइटी, तो वो सब हो गया। फिर इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस रिलेशन है, दोनों में कुछ है ना, सोरा का जो आइडिया है कॉम्प्लीमेंटरिटी है, लेकिन दोनों का एक ऑटोनोमस स्फेयर भी है, वो आइडिया हम लोग देखते हैं। ठीक है, रेसिप्रोकल रिलेशन सिंपल नहीं है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, रिलेशनशिप इज नॉट सिंपल, है ना, कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है, जो बाद में अलग अलग थिंकर ने हाईलाइट किया। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू कंक्लूड, है ना, कंक्लूजन में अपन यूज कर सकते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन द पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट सिंपल, कंप्लीट सेपरेशन नहीं है, देयर आर कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप, है ना, कैन नॉट बी कंप्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम द पॉलिटिकल, है ना, लाइफ। दिस इज हाउ वी कैन कंक्लूड ऑन द डायकोटोमी। ठीक है, जो कंटेम्पररी रोजम है ना, सोरा रोजेनब्लूम या निकोलस हैंडी, 3 आइडिया है, तो उनमें से एटलीस्ट 2 आइडिया को आप यूज कर सकते हैं इन द आंसर। ओके, तो विल टेक 2 minutes break, and in between if you have any doubts before, yeah, please ask. Yeah, you can ask.
Yeah, anything to ask? Yeah, else we'll take a 2 minutes break, after 9:25 पे अपन meet करते हैं, है ना? By that time you can collect your doubts, we'll discuss it. Okay, thank you. Take a 2 minutes break. You can revise your notes also, you can just skim through your class notes. If there is any doubt, you can ask. Yeah, anything to ask before we proceed? तो जो एस्पेक्ट हम लोग बार बार इसलिए एम्फेसाइज कर रहे हैं क्योंकि ना दीज आर द एस्पेक्ट दैट अगेन द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड मोस्टली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस दैट यू आर गेटिंग पहले 2-3 चैप्टर पे थोड़ा स्पेशल एम्फेसिस है, मल्टीपल रिवीजंस भी हो रहा है, so that you are able to recall or remember many of the ideas. अच्छा, यस यस, एल्टन मायो ने है ना ब्रिज अभी ब्रेक, हाँ दिस इज है ना, इन बिटवीन है ना वी कैन टेक द ब्रेक्स आल्सो, है ना, ये जैसे आधे घंटे पे ना थोड़ा सा ब्रेक लेके, सो दैट यू कैन रिवाइज योर क्लास नोट्स एंड देन उसके बाद अगर कोई डाउट्स होता है तो यू कैन राइट इट, यू कैन राइट इन द चैट और यू कैन आस्क इट आल्सो. ओके, so can we proceed now further? Things are clear. Is the pace okay? Are you all comfortable with the pace? Yes, मतलब sir. for me it is bit slower, लेकिन हम चाहते हैं कि at least स्टार्टिंग के जो 2-3 चैप्टर्स है ना उसमें थिंग्स शुड बी वेरी क्रिस्टल क्लियर. कोई भी कंसेप्ट है कहीं से भी पूछ दे, इंटरलिंकेजेस का इशू है, बाद में जाके भले हम क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट पे कई डिस्कशंस रखेंगे और कई सारे चैप्टर्स को है ना डायरेक्ट क्वेश्चंस जो आते हैं जो डायरेक्ट कंसेप्ट है उसमें अधिक से उसमें ज्यादा डिटेलिंग करने की जरूरत नहीं. तो अगेन दैट्स व्हाई आई एम कीपिंग इट बिट स्लोअर एंड देन वी विल हैव द doubts also in between so that you can ask. Okay, can we proceed? Are you all ready? Yeah, you can unmute and save me so Yes, that I sir. can. Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. Yeah. Okay.
Yeah, the topics that now we are going to cover the topics which are very much easier. अब जो टॉपिक्स है उससे क्वेश्चंस नॉर्मली उतने अधिक आते नहीं है ना? तो ये सब क्वेश्चंस जो नॉर्मली दे आर आस्किंग द क्वेश्चन ऑन द स्कोप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. अब जब भी स्कोप का क्वेश्चन आता है, व्हाट यू हैव टू डू कि एक तो है कि हमें स्कोप पे ध्यान रखना है कि स्टेट का स्कोप, यानी स्टेट का जो स्कोप होता है तो वो एडमिनिस्ट्रेशन के स्कोप को भी डिफाइन करता है. हम लोग क्या देखते हैं कि जो स्कोप है, यानी स्टेट और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में जो लिंकेज है, यानी जो स्टेट का नेचर होता है ना, जैसे वेलफेयर स्टेट है उसका अलग स्कोप होगा, वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर रहा है. फिर तुम्हारा जब लेसे फेयर स्टेट आ जाता है, पुलिस स्टेट आ गया, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट आ गया, तो स्टेट का जिस प्रकार नेचर चेंज होता है, जो इकोनॉमिक हिस्ट्री में भी हम लोग देखते हैं, एक वेलफेयर एरा था, है ना, लेसे फेयर एरा था, तो हम लोग अलग अलग जैसे जैसे स्टेट का नेचर चेंज होगा एंड दैट इज गोइंग टू इम्पैक्ट द स्कोप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. हम लोग क्या देखते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को क्या बोलते हैं, स्टेट इन एक्शन. ठीक है, स्टेट इन एक्शन बोलते हैं या गवर्नमेंट इन एक्शन. तो हम अगर देखो विजुअल एस्पेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो जितना अधिक एडमिनिस्ट्रेशन का रोल, यानी स्टेट का जो डोमेन जितना अधिक होगा उतना अधिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्फीयर भी चेंज होगा. तो नेचर ऑफ स्टेट इज गोइंग टू डिफाइन द नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, तो दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नॉर्मली यहाँ पे आता है. ठीक है, स्कोप पे क्वेश्चंस बनते हैं, आते हैं. और डेफिनेशन सर ने कई सारे डेफिनेशंस दिए, नॉट रिक्वायर्ड. तो हमने लास्ट टाइम भी जैसे डिस्कस किया था कि है ना, अलग अलग थिंकर ने अलग अलग ओपिनियन दिया. नैरो स्कूल, ब्रॉड स्कूल, पोस्टकॉब है, मैनेजर सब्जेक्ट मैटर स्कूल है. तो अलग अलग स्कूल ने अलग अलग तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को देखने का कोशिश किया. तो मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स से रिलेटेड है कि सोसाइटी का जो भी अफेयर है, देखो एडमिनिस्ट्रेशन का ओरिजिन लैटिन वर्ड से हुआ है, एडमिनिस्ट्रेट, टू लुक आफ्टर, टू टेक केयर, टू सर्व, यानी जो सोसाइटी का अफेयर्स है ना, पब्लिक अफेयर्स, उसको मैनेज करना है. दिस इज व्हाट द एडमिनिस्ट्रेशन इन जनरल दैट वी अंडरस्टैंड. उसको स्टेट इन एक्शन भी बोलते हैं, विजुअल एस्पेक्ट ऑफ स्टेट भी बोलते हैं, गवर्नमेंट इन एक्शन भी बोलते हैं. तो अलग अलग डेफिनेशंस जो दिया है, नॉट रिक्वायर्ड टू रिमेंबर एवरीथिंग. एक दो जैसे गुलिका नरविक का है, आर्ट ऑफ गेटिंग मैनेजमेंट, है ना. तो जेनरिक व्यू लिया. जेनरिक व्यू जब भी क्वेश्चन आए ना, जेनरिक व्यू मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेजमेंट से इक्वेट कर दिया. ठीक है, और अल्टीमेटली ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू बिकम द administrator. You have to get the things done in the district. Agar all of you become the administrator, district magistrate of your district collector hai, district magistrate hai, commissioner, IPS hai, you have to get the things done. This is your managerial skills, that is going to use, that you have to use the managerial skills. ठीक है, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट भी होता है, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन नैरो डेफिनेशन है ना. तो अब अपन जैसे लास्ट क्लास में भी जो डिस्कस किए थे कि है ना, कि वो अलग अलग डेफिनेशन, उसमें एक दो आपको याद रखना है. एक नैरो डेफिनेशन पे याद कर लो और एक ब्रॉडर का कर लो, और किसी भी एक दो थिंकर का, अपन कोई भी थिंकर का जो रेलेवेंट, जैसे विल्सन है ना, तो उसने विजुअल एस्पेक्ट बोला, एक्शन साइड बोला, ये हमारे समझने के लिए है ना. नॉर्मली दिस इज फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग. एलडी वाइट का जो डेफिनेशन है, एग्जीक्यूशन ऑफ पब्लिक लॉ, थोड़ा एक कॉन्क्रीटनेस देता है डेफिनेशन को, एक कॉन्क्रीटाइज देता है कि हाँ इसको अपन यूज कर सकते हैं इन द आंसर. निग्रो का डेफिनेशन को हम लोग सबसे कॉम्प्रिहेंसिव और ब्रॉडर बोलते हैं. क्यों? क्योंकि उसने जितने भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ओपिनियन हो सकता है ना, कि वे एक्टिविटी भी है, इंस्टीट्यूशन भी है, डिसिप्लिन भी है, और ये प्राइवेट से डिफरेंट भी है. इसका पब्लिक पॉलिसी में रोल है, और ये इंटरडिसिप्लिनरी है ना. तो अब इसमें और कुछ रहा नहीं, इसने जो डेफिनेशन दिया है उसने सब कुछ इंक्लूड कर दिया कि चलो ठीक है, तुम क्या मानते हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फॉर मी इट इज एन एक्टिविटी. अच्छा ठीक है, तुम्हारे लिए एक्टिविटी है, तो मान गए. कोई बोल रहा है नहीं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक इंस्टीट्यूशन है, इंस्ट्रूमेंट है ना, इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करता है, तो ठीक है तुम्हारे लिए इंस्ट्रूमेंट हो गया, इंस्टीट्यूशन हो गया. कुछ एकेडमिक थिंकर है, प्रोफेसर है, बोला नहीं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो विल्सन ने बोला था, सेपरेट डिसिप्लिन होना चाहिए, जो टूल्स एंड टेक्निक्स बनाएगा, थ्योरी बनाएगा, यूनिवर्सल प्रिंसिपल बनाएगा, दैट इज द आइडिया ऑफ डिसिप्लिन. तो बोला ठीक है, तीनों हम मान लेते हैं. तो उसने जो डेफिनेशन सब कुछ इनकॉर्पोरेट कर दिया. तो मोस्ट ब्रॉडर डेफिनेशन इज गिवन बाय निग्रो. तो उससे मतलब ये एक तो ये याद कर लो निग्रो का, या निकोलस हेंडी का डेफिनेशन याद कर सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस, पॉलिसी मेकिंग है, मैनेजमेंट रोल है, डिसिप्लिन है ना. तो इसमें अपन देखते हैं कि थोड़ा नॉर्मली निग्रो को प्रेफर करते हैं. ब्रॉडर जब देखो जब भी क्वेश्चन नैरो पे आए, अगर स्टेटमेंट नैरो दिया हुआ है उसको कहते हैं एग्जामिन, तो आपको काउंटर किससे करना है, ब्रॉडर स्कूल से.
है ना। जब ब्रॉडर व्यू दे दिया तो उसमें कोर और पेरिफेरी वाला कॉन्सेप्ट भी लेके आएंगे, एम्बिगुअस नहीं है, एमॉर्फस तो है ना, पेरिफेरी है ना, पेरिफेरल चेंजेस हो रहा है लेकिन कोर भी है। अब ये आता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एक जैसे ये नॉर्मली क्वेश्चन आ जाए, मान लो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डील्स विद द हाउ टू रन द गवर्नमेंट एफिशिएंटली। तो ये अभी एक कंसर्न है, जो डिसिप्लिन का भी यही है ना कि गवर्नमेंट कैसे एफिशिएंट तरीके से काम करे, उसके लिए हम टूल्स एंड टेक्निक्स प्रिंसिपल डेवलप करेंगे, है ना। तो हम ये जितने भी डेफिनेशन नैरो ब्रॉड ये सब से क्या पता चल रहा है, अल्टीमेटली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक डायनेमिक डिसिप्लिन है ना। 8087 में विंडो विल्सन ने ऐसे लिखा, उसके बाद ये डिसिप्लिन का तरह है ना, बाद में इमर्ज होने लगा, तो वहां से पैराडाइम शुरू हो जाता है। ठीक, तो जो गुलिक-एनार्विक एक्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन या मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ द स्टेट, अब सोसाइटी में जो भी काम हो रहा है, जो भी इश्यूज आ रहा है, जो भी प्रॉब्लम है, अल्टीमेटली कौन मैनेज कर रहा है? एडमिनिस्ट्रेशन ही तो मैनेज कर रहा है ना। तो हम क्या करते हैं, इट इज एन एक्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स, है ना। तो ये हम लोग एक है, और हम लोग ये भी देखते हैं कोऑपरेट एंड कोऑर्डिनेट, देयर आर ग्रुप्स, देयर आर कॉमन पर्पस है, सरकार का एक कॉमन पर्पस है, वेलफेयर के लिए काम करना है, लोगों के नीड्स को पूरा करना है। उसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है ना। आई थिंक सम ऑफ यू हैव द एक्सपीरियंस ऑफ, सम ऑफ यू आर आल्सो वर्किंग इन द प्राइवेट सेक्टर, और you have the experience of working in different organizations, or many of you have might have organized lot of एक्टिविटीज इन द कॉलेजेस, है ना। कॉलेज में हम लोग कई सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, वहाँ क्या देखते हैं, कॉपरेशन हो रहा है, कोऑर्डिनेशन हो रहा है, कई सारे अलग अलग लेवल हायरार्की है ना, पिरामिडिकल पहले होता था, आजकल तो मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स लाइक स्ट्रक्चर है, टीम बिल्डिंग करते हैं अपन। ठीक है, तो दो से अधिक लोग आपस में कम्युनिकेशन होगा, कोऑर्डिनेशन होगा, यही सब जो डिटेलिंग अपन करते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर बाद में सब्जेक्ट बन के आता है। ये आप कोऑर्डिनेट कैसे करोगे, आपका लीडरशिप क्वालिटी क्या है, कम्युनिकेशन कैसे होना चाहिए, है ना। तो ये सारे मोटिवेशन क्या है, अलग अलग लोगों का मोटिवेशन अलग अलग। जब भी आपने जो ऑर्गेनाइजेशन में काम किया या जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया, उसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, पीपुल हैव देयर डिफरेंट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। तो वो हम लोग मोटिवेशनल थ्योरीज ये सब में अपन डिटेलिंग में देखें। ठीक, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक प्राइवेट है ना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देयर आर, है ना, पोस्ट कॉप जो गुलिक-एनार्विक देता है, पोस्ट कॉप प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, रिपोर्टिंग, ये सब। तो एक्रोनिम ये सब जो पीओसीसी का एक्रोनिम जो फ्योल ने दिया, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कंट्रोलिंग, ये सब क्या हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये सारे एक्टिविटीज होते हैं। दीज आर एक्टिविटीज इन द इन द एनी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे पब्लिक है या प्राइवेट। तो इसलिए एक स्टेटमेंट बोला जाता है, देयर इज एडमिनिस्ट्रेशन नथिंग पब्लिक अबाउट इट, है ना। नॉर्मली है ना, मोहंती सर ये स्टेटमेंट रिपीट करते हैं क्लास में कई बार कि है ना, एडमिनिस्ट्रेशन नथिंग पब्लिक अबाउट इट, यानी उसका मतलब क्या हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन तो मैनेजमेंट अफेयर्स, अफेयर मैनेजमेंट, है ना। मैनेज व्हाट इज दिस एडमिनिस्ट्रेशन, इट इज एन एक्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स, है ना, जिसमें दो या दो से अधिक लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, किसके लिए, कॉमन पर्पस के लिए। तो पब्लिक हो, प्राइवेट हो, टेम्पल हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, हर जगह तो वही चल रहा है। तो पब्लिक प्राइवेट का कॉन्सेप्ट ही नहीं, देयर इज नथिंग पब्लिक अबाउट इट। तो मतलब वो हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन इज जो जेनेरिक व्यू कहते हैं, है ना, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन मतलब मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, कॉपरेशन होता है। ठीक है, तो हम लोग को डेफिनेशन में एक दो थिंकर याद करने, नैरो ब्रॉड स्कूल का कुछ आइडिया होना चाहिए, वो क्रिटिकल एग्जामिनेशन वाले क्वेश्चंस में काम आता है। जो अब हम Q&A करेंगे उसमें हम बताएंगे किस प्रकार से उसका यूज करेंगे, नैरो स्कूल, ब्रॉड स्कूल, है ना। और केवीसी ने जो आई थिंक है ना, सम ऑफ यू आल्सो अरिबम का किताब भी आपने पढ़ा है, उसमें भी उसमें एलोबरेट किया गया है। ठीक है, तो अब एडमिनिस्ट्रेशन का डेफिनेशन अपन देख लिए, है ना। थिंकर्स, किसी भी एक थिंकर का अपन एल डी वाइट का देखा था, है ना, तो वो देख लेना है। फिर न्यूट्रल टर्म है, यानी जेनरिक व्यू, है ना। इसको बाद में जेनरिक व्यू मतलब इक्वेट कर दिया एडमिनिस्ट्रेशन को, बिजनेस को, लेकिन देयर इज अ सेपरेशन, है ना। ये टेबल में ये हमारे समझने के लिए है ना, इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू रिमेंबर, है ना। यू कैन जस्ट हैव द लुक एट योर नोट्स, है ना, रिमेंबर, एक बार अंडरस्टैंडिंग हो गया, खत्म कहानी। फिर इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अब 8087 से शुरू तो हुआ, अब तक क्या, अभी क्या स्टेटस है, क्या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ना एज ए कंप्लीटली सेपरेट डिसिप्लिन एक्सेप्टेबल है, देयर आर प्रिंसिपल्स, थ्योरीज और नॉट, है ना, डू वी हैव द थिंकर्स, स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशंस ऑफ वेरियस थिंकर्स। तो व्हाट इज द नेचर ऑफ डिसिप्लिन, इज इट इंटरडिसिप्लिनरी और है ना स्पेशलाइज सब्जेक्ट। तो वो सारा चीज अपन स्टेटस में देखते हैं कि डायकोटोमी का आइडिया रिजेक्ट हो गया 40s के बाद, है ना। ऑल एडमिनिस्ट्रेशन मीन नथिंग बट पॉलिटिक्स, ये तो एप्पल बाय उस समय जब इवोल्यूशन देखते हैं उसमें ना अलग अलग फेजेज में देखते हैं किस प्रकार का आइडेंटिटी क्राइसिस आएगा, फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, है ना, जो मतलब उसका जो है एज ए सेपरेट डिसिप्लिन डायकोटोमी रिजेक्ट हो गया, इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी का एग्जिस्टेंस क्राइसिस आ गया, तो उसमें पॉलिटिक्स से इक्वेट कर दिया गया। एक समय क्या देख रहे हैं, 40s के पहले पॉलिटिक्स को, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से लिंक कर दिया गया।
बाद में इसको इक्वेट कर दिया गया पॉलिटिक्स से, है ना। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज, है ना, नथिंग, ऑल एडमिनिस्ट्रेशन मीन नथिंग बट द पॉलिटिक्स। तो दैट वाज द फेज ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस। फिर 1970s आते आते अपन क्या देख रहे हैं, 1970 आते आते यहाँ पे देखते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन का स्टेटस मिलता है। तो अब इसमें क्या इवोल्यूशन जब भी आपको देखना है, देयर आर मल्टीपल थिंकर्स, निकोलस एंडी है, कोलंबस है, हम ये दो मेनली थिंकर लोकस एंड फोकस का यूज किया है इसमें, ठीक है। तो निकोलस एंडी का डेफिनेशन ऊपर भी देख चुके हैं कि कॉम्बिनेशन है थ्योरी एंड प्रैक्टिस का, रिलेशनशिप को डिफाइन करता है ना, पॉलिसी मेकिंग से, है ना, पॉलिटिक्स डील करता है, और इम्प्लीमेंटेशन एफिशिएंसी इंस्टीट्यूशंस का काम यही है। तो लोकस एंड फोकस वाले आइडिया को यूज करेगा गोलम्बस्की। एंड लोकस मतलब होता है जहां पे लोकेटेड है, जो इंस्टीट्यूशंस के बारे में आप पढ़ते हैं। फोकस होता है सब्जेक्ट मैटर, यानी फोकस क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए सेपरेट डिसिप्लिन, जो विडो विल्सन ने बोला, उसका सब्जेक्ट मैटर क्या होगा, दैट वाज द लोकस एंड फोकस। तो अब ये क्या देखते हैं, अलग अलग फेजेज में हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि डिसिप्लिन, है ना, सब्जेक्ट मैटर काफी डायनामिक है। चेंजिंग अफेयर्स ऑफ द स्टेट, स्टेट का अफेयर तो सेम नहीं, सोसाइटी सेम तो रह नहीं सकता है, या एनीथिंग टू आस्क। हाँ प्लीज। मतलब किस एनवायरमेंटल या किस ऑर्गेनाइजेशन कंटेक्स्ट में लोकेटेड है या किस इंस्टीट्यूशन में लोकेटेड है? हाँ, ये लोकस हो गया किस इंस्टीट्यूशन में लोकेटेड है मतलब ना? पब्लिक प्राइवेट आएगा या फिर बिल्कुल, पब्लिक प्राइवेट हो गया या पॉलिटिक्स हो गया, है ना, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर जो भी, लोकेटेड मतलब लोकेशन या इंस्टीट्यूशन बोल सकते हैं। फोकस मतलब सब्जेक्ट मैटर, आखिर कंटेंट क्या है, सब्जेक्ट मैटर, डिस्कशन डिबेट का टॉपिक क्या है, रिसर्च का टॉपिक क्या है, दैट इज द फोकस। सब्जेक्ट का फोकस क्या है ना, प्रिंसिपल्स, टूल्स, टेक्निक्स डेवलप करने का। लोकस हो गया इंस्टीट्यूशन, है ना। तो यू शुड हैव द सम क्लैरिटी, नॉर्मली डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आता है, बट उसके आइडियाज को यूज करते हैं अपन आंसर में। एक दो और क्वेश्चन आ चुका है लोकस एंड फोकस पे, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि भाई एग्जीक्यूशन ऑफ पब्लिक लॉ है ना, एल डी वाइट ने भी बोला था। तो अब सेकंड, पहला पैराडाइम में तो अपन देखते हैं जेनरिक व्यू आता है, उसमें ना, उसमें क्या है, फोकस क्लियर है, लोकस, है ना, क्लियर नहीं है। फोकस मतलब अब सब्जेक्ट मैटर तो हो गया कि भाई मैनेजमेंट अफेयर्स है, जेनरिक व्यू आ गया, लेकिन अब वहाँ पे पब्लिक प्राइवेट का डिस्टिंक्शन भी खत्म हो गया, है ना। तो अलग अलग पैराडाइम देखते हैं कि किस पैराडाइम में क्या है क्या नहीं है। तो हमको क्या ध्यान रखना है कि जो भी पैराडाइम है, पहला पैराडाइम, सेकेंड पैराडाइम, मेजर थीम क्या था, हर पैराडाइम का आपको मेजर थीम पता होना चाहिए, है ना, उसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन। जो पेपर, जो चैप्टर 2 है ना, चैप्टर 2 जो थिंकर वाला पार्ट है, उसमें पैराडाइम 1, है ना, को बहुत ही एक्सटेंसिवली कवर करते हैं थिंकर के द्वारा, ठीक है। फिर पैराडाइम 2 के कुछ एस्पेक्ट को भी अपन थोड़ा बहुत टच करते हैं, इसलिए चैप्टर 2 में अगेन द कंटेंट दैट यू विल बी गेटिंग इन द, चैप्टर 2 आल्सो। फिर उसका डेफिनेशन अपन देखी हुई है, निग्रो निग्रो का एक्टिविटी भी है, इंस्टीट्यूशन भी है ना, इंटरडिसिप्लिनरी है, प्राइवेट से डिफरेंट। तो अगेन निकोलस हैंडी का जो डेफिनेशन है, 4 कंपोनेंट उसने दिया। तो ये सब तो आइडिया है। फिर हम लोग क्या देख रहे हैं, 2008 का जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, थर्ड कॉन्फ्रेंस, इसमें ना इसको डिफाइन कर दिया, सोशली एम्बेडेड प्रोसेस। ये, है ना, एक इंस्टीट्यूशनल डेफिनेशन है, या एक मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो बोल सकते हैं कि स्कूल ऑफ थॉट है ना, एनपीए का, या उससे अपन निकल के आता है कि कलेक्टिव डायलॉग जो गुड गवर्नेंस का आइडिया को भी इनकॉर्पोरेट कर रहा है, एनपीएम के आइडिया को भी कर रहा है। तो आज के कॉन्टेक्स्ट में सोशली एम्बेडेड इकोलॉजिकल मॉडल भी है। सोशली एम्बेडेड मतलब जिस सोसाइटी में अगर एडमिनिस्ट्रेशन काम करेगा उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। कलेक्टिव डायलॉग मतलब नेगोशिएशन है, डिस्कशन है, कंसेंसस मेकिंग है, पार्टिसिपेशन है। एक्शन मतलब इम्प्लीमेंटेशन। तो हम क्या देख रहे हैं, आजकल सोशल ऑडिट हो रहा है ना, सिविल सोसाइटी पार्टिसिपेशन है। तो अल्टीमेटली सब लोग किसके लिए काम कर रहा है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की भी बात करते हैं, ह्यूमन राइट की भी बात करते हैं, सोशल जस्टिस की बात करते हैं। तो अल्टीमेटली ऑल एवरीथिंग इज रिलेटेड टू ह्यूमन फ्लोरिशिंग फॉर ऑल, है ना। दैट वाज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन दैट वाज गिवन बाय दैट दिस प्लेटफॉर्म मिंडो थर्ड कॉन्फ्रेंस के थ्रू इसको दिया गया। तो दिस इज व्हाट यू कैन डायरेक्टली, कई बार क्वेश्चन भी आता है और इसको यूज भी करते हैं, कंक्लूजन में भी अपन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यही प्लेटफॉर्म अपन देखते हैं। बाकी जैसे इसके कई प्लेटफॉर्म देखते हैं कि डॉट वाल्डो ने रिमार्क किया था कि भाई इसको डिफाइन नहीं कर सकते, है ना, द सेम प्लेटफॉर्म विच गेव द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। उसका जो पहला कॉन्फ्रेंस था उसमें राइट वाल्डो ने बोला था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को डिफाइन करना मेंटल पैरालिसिस, है ना, इट इज बेटर नॉट टू डिफाइन इट। लेकिन वही सेम डेफिनेशन बाद में जाके सेम प्लेटफॉर्म डिफाइन भी करता है। तो अगेन दैट इज द दिस इज ओनली फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, and it is not required to remember or write in the answers. It is not required, you will not get opportunity to use this content, ठीक है। तो बस ये डायनेमिक नेचर है, सब कॉमन आ रहा है ना। तो सिंपल अगर अप्लाइड डिसिप्लिन है, ये अपन अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए सर ने लिखा है।
तो यू कैन हैव दिस एज ए कंक्लूजन जब डिसिप्लिनरी क्वेश्चन आता है, तो कि पबैट एज ए डिसिप्लिन या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का डेफिनेशन इतने कॉम्प्लेक्स है, तो हाउ टू कंक्लूड इट। तो कंक्लूजन में या तो थर्ड कॉन्फ्रेंस के डेफिनेशन को भी कोट कर सकते हैं, या अपन सिंपली अप्लाइड साइंस है जो किससे डील कर रहा है, गवर्नमेंट कैसे एफिशिएंटली रन करे, विल्सन का आइडिया इनकॉर्पोरेट हो गया। इट इज ए डिसिप्लिन एंड प्रैक्टिस, निग्रो का आइडिया को भी इनकॉर्पोरेट कर दिए। तो वही है कंसर्न किससे, गवर्नमेंट को कैसे एफिशिएंटली काम करना है। दिस इज फॉर आवर ऑन अंडरस्टैंडिंग सिंप्लीफिकेशंस, ठीक है। फिर स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, स्कोप एज एक्टिविटी, एज इंस्टीट्यूशन देख रहे हैं, एज ए डिसिप्लिन देख रहे हैं। एक्टिविटी जैसे मान लो स्कोप क्या है, टू व्हाट एक्सटेंट, आज के कॉन्टेक्स्ट में एडमिनिस्ट्रेशन क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है ना। तो वो हम लोग देखते हैं कि स्कोप कैसे चेंज होता है। डू है ना, यू कैन इमेजिन कि भाई वो 90s में क्या था, 21st सेंचुरी में क्या था, 20th सेंचुरी में क्या था। तो जिस प्रकार से स्टेट का नेचर स्कोप चेंज हो रहा है, उसी प्रकार से एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी भी। आजकल तो पीपीपी कॉन्सेप्ट है, आउटसोर्सिंग, कॉन्ट्रैक्टिंग आउट। तो क्या होगा, स्कोप कम हो रहा है, रेगुलेटरी रोल बढ़ गया, फैसिलिटेटर, इनेबलर, जो कॉन्सेप्ट अपन है ना लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे। तो स्कोप एज ए डिसिप्लिन क्या है कि अभी भी है ना सब्जेक्ट मैटर हम लोग क्या भाई टूल्स एंड टेक्निक्स है। रिक्स का भी जो हर्ट था कंपैरेटिव पबैट में, उसमें भी है ना यूनिवर्सल प्रिंसिपल डेवलप करने का बात करने की उन्होंने कोशिश किया, ठीक है। तो ये हम लोग देखते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत है ये एक्टिविटी, और ये डिसिप्लिन का काम क्या है, ठीक है। तो एक्टिविटी है ना, तो हम तो इज इट पॉसिबल द एक्टिविटी परफॉर्म इन 1950s विल रिमेन द सेम इन द टुडेज कॉन्टेक्स्ट, है ना। आज के कॉन्टेक्स्ट में तो सेम ऐसा आज जो हो रहा है 50 साल बाद 100 साल बाद सेम नहीं रहने वाला है। इस सेम प्रकार है ना, 50 साल पहले और 100 साल पहले जो था, एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट वाज डिफरेंट, एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग काम करता था, जो आज के कॉन्टेक्स्ट में भी डिफर कर रहा है। आजकल नए नए डायमेंशंस ऐड हो गए, नए डोमेन आ गए, प्राइवेसी है, सिक्योरिटी है ना, क्लाइमेट चेंज है। तो अलग अलग डायमेंशन हम क्या एडमिनिस्ट्रेशन, अब डिजास्टर मैनेजमेंट में एडमिनिस्ट्रेशन का रोल है, इंटरनल सिक्योरिटी में एडमिनिस्ट्रेशन का रोल है, और टेक्नोलॉजी में भी एडमिनिस्ट्रेशन रोल है। तो चेंजेस हो रहा है, डिजिटल एरा गवर्नेंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप क्या देख रहे हैं कि स्कोप में हम लोग को जो डायमेंशंस क्या ध्यान रखना है कि आखिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कौन कौन सा एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। पहला एक्टिविटीज, दूसरा एज ए डिसिप्लिन, इसका सब्जेक्ट मैटर क्या होना चाहिए। सब्जेक्ट मैटर भी चेंज हो रहा है आजकल, डिजिटल एरा गवर्नेंस या आईटी है, क्लाइमेट चेंज है ना। तो ये सब सब्जेक्ट मैटर भी एडमिनिस्ट्रेशन का चेंज हो रहा है। एज एन एक्टिविटी भी अलग अलग एक्टिविटीज परफॉर्म, वो भी चेंज हो रहा है ना। तो स्कोप को नॉर्मली मैनेजरियल व्यू मतलब टॉप व्यू, जो फ्योल का आइडिया था मैनेजरियलिज्म का, या न्यू टेलरिज्म में जो बताते हैं अपन। इंटीग्रल व्यू मतलब जीरो है ना, बॉटम टू टॉप, जितने भी अधिकारी, जितने भी लोग हैं, तो पूरा होलिस्टिकली जो भी काम हो रहा है मैनेजमेंट में या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो इंटीग्रल व्यू, होलिस्टिक व्यू, ब्रॉडर व्यू टाइप हो गया। एक नैरो व्यू और नैरो स्कोप है, ब्रॉडर स्कोप है। तो ये सिमिलर है, मतलब जो मीनिंग में अपन देखें नैरो व्यू, ब्रॉड व्यू, तो सेम आइडिया यहाँ भी यूज किया गया, मैनेजरियल व्यू या है ना इंटीग्रल व्यू। इंटीग्रल व्यू मतलब सब एक्सेप्टेबल है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन मतलब अगर कोई डिस्ट्रिक्ट में भी, पुलिस थाने में भी कुछ काम होता है, तो दैट इज आल्सो कंसीडर एडमिनिस्ट्रेशन। तो हम लोग देखते हैं कि कांस्टेबल से स्ट्रीट लेवल ब्यूरोक्रेसी की बात आजकल होता है, तो वहां से लेकर इंटीग्रल व्यू, मैनेजरियल व्यू नैरो व्यू की तरह हो गया, ठीक है। नैरो ब्रॉड है, सिमिलर आइडिया है, तीन ऑर्गन जो परफॉर्म करता है, ठीक है। स्कोप हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो चेंजेस 1950s कौन सा एरा था, वाज इट वेलफेयर एरा और लेसे फेयर एरा। 1950s और 60s का दौर क्या था, सर वेलफेयर। हाँ वेलफेयर था। तो वेलफेयर में क्या होता है, स्टेट हैव टू एक्ट प्रोएक्टिवली, है ना, कई सारे वेलफेयर। हाँ, तो इससे क्या होगा, स्कोप बढ़े, एक्सपेंशन होगा, है ना, कई एक्टिविटीज में एक्सपेंशन, ट्रिमेंडस चेंज हुआ। हम लोग इसकी पीछे का कहानी जो पवन सर नॉर्मली क्लास में सुनाते हैं, क्या होता है कि जो 1929 का जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस भी किया था, कि 1929 में क्या देखते, इकोनॉमिक क्राइसिस आया, है ना। उससे पहले लेसे फेरे था, लेसे फेरे स्टेट था। फिर 1929 के बाद देखते धीरे धीरे पब्लिक सेक्टर, है ना, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का इमरजेंस आता है, केनेसियन इकोनॉमिक्स आएगा, वेलफेयर इकोनॉमिक्स आएगा। तो इससे स्टेट का रोल क्या होता है, वेलफेयर एरा आ गया। वेलफेयर एरा हम धीरे धीरे कह रहे हैं, पब्लिक सेक्टर जो है प्राइवेट सेक्टर को पहले सप्लीमेंट करने आया था, सपोर्ट करने आया था, बाद में पब्लिक सेक्टर उसको रिप्लेस कर देता है, मोनोपोली आ जाता है। मोनोपोली आने के बाद क्या होगा, वेलफेयर एरा में पब्लिक सेक्टर फेल करने लगा, करप्शन, इनएफिशिएंसी, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। फिर अब इसका जब क्रिटिसिज्म आएगा, तो यहाँ पे फिर अपन वापस क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट आउट करो, प्राइवेटाइज करो, है ना, वापस से कॉन्सेप्ट आएगा, लेकिन कंप्लीटली वैसे फेयर नहीं होगा। यहाँ पे क्या है, रेगुलेटरी स्टेट की बात करते हैं, रेगुलेशन की बात करते हैं। तो दिस इज हाउ थिंग्स आर कनेक्टेड, है ना, एक लॉजिकल कहानी के तौर में। अब प्लस में हम देखते हैं पीएसयू जब आया था वेलफेयर एरा में, क्या देखते हैं कि वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, ये सब क्या ना फंडिंग वंडिंग कर रहा था, पैसे दे रहा था, लोन दे रहा था। लेकिन 1970-80 आते आते क्या हुआ,
मेनी ऑफ द डेवलपिंग कंट्री क्या होता 1990 आते आते तो दे वर नॉट एबल टू रिपे देयर लोन्स, है ना, लोन्स रिपे नहीं कर पा रहे। तो अब रियलाइज हुआ, इसलिए स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम का जो कॉन्सेप्ट आता है ना, तो स्कोप ऑफ एक्टिविटी जब अपन देखते हैं तो वहां से भी लिंक करते हैं कि पहले लेसे फेयर स्टेट में स्टेट लिमिटेड रोल था, फिर वेलफेयर आ गया, वेलफेयर में एक्सपेंड हुआ, कई सारे एक्टिविटी स्टेट खुद करने लगा, लॉस मेकिंग हो गया, लेजिटिमेसी क्राइसिस आ गया, फिजिकल क्राइसिस था, लेजिटिमेसी क्राइसिस था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि स्टेट वर्ल्ड बैंक IMF ये सब लोन दिया था, लोन रीपे नहीं हो पा रहा है, तो 1990 आते आते स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम के थ्रू, है ना, जिसको वाशिंगटन कंसेंसस भी बोलते हैं, कि आपको ये सारे रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है, जिसमें प्राइवेटाइजेशन है, कॉन्ट्रैक्टिंग आउट है, गुड गवर्नेंस मेजर्स है, पार्टिसिपेशन है, ये सारे फैक्टर्स अपन आगे डिस्कस करेंगे, है ना। तो ये सारा चीज इंटरकनेक्टेड है, तो स्कोप को आपको लिंक करना है। स्कोप मतलब आपको एक्टिविटी दिखाना है कि स्टेट का नेचर किस प्रकार चेंज हुआ और उसके हिसाब से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए डिसिप्लिन हाउ इट हैज इवॉल्व। ठीक है, तो स्कोप एज ए डिसिप्लिन में मेनली दो पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है। एक तो है कि पोस्ट कॉप मतलब मैनेजरियल टेक्निक्स, टूल्स, टेक्निक्स वाला पोस्ट कॉप में आ जाता है। सब्जेक्ट मैटर हो गया पब्लिक पॉलिसी, यानी फोकस क्या है, थ्योरी बिल्डिंग, ये मेन कंसर्न्स है। स्कोप में भी आप एज ए स्कोप ऑफ पबेड एज ए डिसिप्लिन जब हम बात करेंगे, सब्जेक्ट मैटर स्कूल देखेंगे और पोस्ट कॉप मैटर देखेंगे, है ना। तो अब जैसे मान लो कि ये जो ये इसरो है या पोस्ट कॉप एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है कि भाई टूल्स एंड टेक्निक्स, IT इंडस्ट्री, इनोवेशन आ रहा है, तो आजकल कॉन्टेक्स्ट में सब्जेक्ट मैटर भी चेंज हो रहा है ना। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट बदल रहा है, सिचुएशन चेंज हो रहा है, उस हिसाब से स्कोप और नेचर भी चेंज हो रहा है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आज क्या है, पहले तो एकदम सिलोज में पढ़ रहे थे, आजकल मल्टी डिसिप्लिनरी हो गया। तो 3 मेजर डेवलपमेंट जो है, तो 1950s का वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ भी सर ने डिस्कस किया। फिर इसके बाद वो जो अपन कहानी डिस्कस किया कि सारा एक्टिविटी सरकार कर रहा है, PSU कर रहा है, PSU का मोनोपोली हो गया, प्रॉब्लम होने लगा, फेलियर होने लगा, तब जाके फिर वर्ल्ड बैंक IMF से लोन ले लेके काम कर रहा था, पैसा कर्ज लेके वेलफेयर काम कर रहा था, टैक्स तो आ नहीं रहा था, एक्टिविटी इकोनॉमिक हो नहीं रहा था। तो अब वो डिपेंडेंस हो गया वेस्टर्न कंट्री पे, वर्ल्ड बैंक IMF पे। बाद में उसको, है ना, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम में बोला इस सबको प्राइवेटाइज करो, इसको ना कॉन्ट्रैक्ट आउट करो, ओपन अप द मार्केट। तो अब यहाँ पे ना जो LPG रिफॉर्म्स अपन बोलते हैं वो आता है इधर, ये जो 90s में जो वेलफेयर एरा का पोस्ट। फिर पोस्ट LPG में अपन क्या देख रहे हैं, बहुत सारा, है ना, अब स्टेट सब कुछ छोड़ छाड़ के चल गया, प्राइवेटाइज कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट आउट कर दिया। प्रॉब्लम क्या हो रहा है, देयर आर पीपल, पीपल आर नॉट एबल टू, देयर आर इनइक्वालिटी, लॉट ऑफ इनइक्वालिटी, पुअर पीपल नॉट एबल टू मैनेज। यूजर फी चार्ज करोगे तो कितना लोग यूज कर पाएगा, है ना। तो प्राइवेट सेक्टर वहीं जाएगा ना जहाँ पे इकोनॉमिक वायबिलिटी है, जहाँ पे कॉमर्शियल एंगल प्रॉफिट आ रहा है। हर जगह तो जाएगा नहीं, रूरल बैकवर्ड रीजन में नहीं जाएगा, तो मार्केट वाला अगेन अनेबल टू फुलफिल दोज नीड्स ऑफ सिटीजन। इसलिए न्यू पब्लिक सर्विस का कॉन्सेप्ट, है ना, या न्यू वेवेरियन स्टेट का कॉन्सेप्ट, न्यू पब्लिक गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट, ये सब कहीं ना कहीं देखो जितने भी थ्योरेटिकल डेवलपमेंट है, दे आर कनेक्टेड टू द कंटेक्स्ट इवॉल्विंग सिचुएशंस ऑफ द टाइम। इसलिए आपको इकोनॉमिक हिस्ट्री, पॉलिटिकल हिस्ट्री अगर आपके क्लियर है, इफ यू आर, है ना, पॉलिटिकल हिस्ट्री पता है, इकोनॉमिक हिस्ट्री, तो मोस्टली, है ना, जो अधिक से कंसेप्ट जो यूज होता है पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स का आइडिया को, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में नॉर्मली हम लोग काफी आइडियाज को यूज करते हैं। तो यू शुड हैव द सम आइडिया ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ एनी कंट्री। ठीक है, 3 स्टेज देख लिए, पहला हुआ वेलफेयर, दूसरा LPG, तीसरा पोस्ट LPG। जितने भी डेवलपमेंट है ना, दे विल बी, जैसे NPM है, ये LPG के टाइम में NPM आएगा, रिगनिज्म है ना, थेचरिज्म है। ये सारा 1990s में अपन देखते हैं कि यहाँ पे रिगनिज्म, थेचरिज्म, कॉन्ट्रैक्ट आउट, है ना, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, तो ये सब इसी फेज में आएगा। वेलफेयर में न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फेज था, है ना, पब्लिक ओरिएंटेड, सर्विस ओरिएंटेड, है ना, पब्लिक पॉलिसी, स्कूल्स, या फिर जो वाइडनर का जो कॉन्सेप्ट है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का, ये सब वेलफेयर के टाइम में इवॉल्व होता है। ठीक है, तो ये सारा चीज इंटरकनेक्टेड, इंटरलिंक। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, स्कोप क्या डायनेमिक है, सिंपल तो है ना, तो डिफिकल्ट है, इसलिए डिफिकल्ट टू डिफाइन, तो लेकिन कैन नॉट बी डिफाइंड, है ना। तो थर्ड मिनडो कॉन्फ्रेंस क्या किया, डिफाइन तो किया, कई सारे थिंकर ने डिफाइन किया, तो, है ना, तो कहीं ना कहीं डिफाइन करने का अटेम्प्ट भी किया गया स्कोप को। तो लेकिन क्या कोर एंड पेरिफेरल आइडिया यूज कर सकते हैं, या फिर स्कोप डायनेमिक है, डील्स विद द अफेयर्स ऑफ द स्टेट, एंड अफेयर्स ऑफ द स्टेट इज नॉट ए फिक्स एंटिटी, वो चेंज होता रहता है। ठीक है, तो अभी एक अलग अलग व्यू है कि भाई डिटरमाइंड व्हाट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम डज, है ना। इन प्रैक्टिस मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो काम कर रहा है उसी को हम लोग स्कोप से रिलेट करते हैं। इज इट बाउंड्री लेस, क्वेश्चन आता है,
तो कोर एंड पेरिफेरी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे बहुत अच्छे से यूज करते हैं डॉइट वाल्डो का। तो क्वेश्चन इस पे आता है, जो स्कोप मीनिंग है ना, उस स्कोप वाले पे अपन इसलिए शुरू में डिस्कस किए, इससे क्वेश्चन आता है। कोर एस्पेक्ट सीधा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो सिलेबस है उसको आप रिलेट कर दो, पर्सनल है, फाइनेंशियल है, पब्लिक पॉलिसी है, पब्लिक गवर्नेंस, ये क्या है, सीपीए डेवलपमेंट, ये सब तो पूरा सिलेबस ही है। तो कोर में अपन डाल सकते हैं, कोर को अलग से याद करने की जरूरत नहीं, एग्जाम्पल आपको लिखना पड़ेगा। कोर एंड पेरिफेरी सिर्फ लिखने से नहीं, कोर के एक दो एग्जांपल कोट कर दिए, पेरिफेरी के कुछ, जैसे मान लो डेवलपमेंट है, एलपीजी है ना, पीसीए है, ये सब क्या पेरिफेरी में चेंज होता रहा है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट द आंसर इन द स्कोप वाले पार्ट। ठीक है, फिर है ना पब्लिक चॉइस अप्रोच, ये सब तो स्कोप में देखने किस प्रकार डायनेमिक है, चेंजेस कैसे आ रहा है, बाउंड्री लेस का बात कैन नॉट बी कंसीडर बाउंड्री लेस, है ना। तो डॉइट वाल्डो ने वही सेम आइडिया को यहाँ पे जो यही है, शॉर्ट नोट में अपन ये लिखने की जरूरत, ये पार्ट को आपने अगर लिख दिया, यू डोंट हैव टू गो थ्रू दिस डायमेंशंस, है ना, ये ऑलरेडी आप समझ चुके हैं कि पेरिफेरी है डायनेमिक होता है, लेकिन कोर डिफाइंड है, फिक्स है। आजकल तो एक्सट्रीम लेवल ऑफ डाइवर्सिटी आ गया, जब से पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट कंस्ट्रक्टिविज्म या डीकंस्ट्रक्टिविज्म है, पोस्ट एनपीएम है, पोस्ट एलपीजी है, पोस्ट ग्लोबलाइजेशन है, तो ये सारे डेवलपमेंट क्या और अधिक इसको इंटरडिसिप्लिनरी बना दिया है। तो अब ये क्रिटिकल, हाँ हाँ प्लीज आज सर स्कोप वाले क्वेश्चंस में बेसिकली जो मैंने ऑब्जर्व किया, उसको क्या कर सकते हैं हम, जो आगे फर्दर कॉन्सेप्ट्स आ रखे हैं, जैसे डेवलपमेंट्स हो रखी है मेजर मेजर, बेसिकली जैसे एलपीजी हो गया, उसके बाद एनपीएस हो गया, गुड गवर्नेंस हो गया, ये सब इनको उठा उठा के इनके जो कंटेंट है हम स्कोप में डाल सकते हैं डायरेक्टली। बिल्कुल डाल सकते हैं, दिस इज व्हाट बेसिक यू नो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, स्कोप तो वही है ना, क्योंकि स्टेट कर क्या रहा है, स्टेट क्या करेगा उस समय का जो डोमिनेंट फिलोसफी होगा। ठीक है, और ठीक एक इसमें ना ग्राफ यूज कर सकते हैं सर, ग्राफ भी बताते हैं जब, है ना, टेस्ट सीरीज में अपन डिस्कस करेंगे, तो उसमें ग्राफ का भी रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, कहाँ स्कोप स्प्रेड किया, वेलफेयर एरा में फैल गया, है ना, फिर एलपीजी एरा में श्रिंक किया, फिर पोस्ट एलपीजी में बैलेंस बनाने का काम कर रहा है। तो अपन ने अलग अलग जैसे डायमेंशन है ना, कि पहले है ना वेलफेयर एरा में फैला, पहले लेसे फेरा था, कम हुआ, वेलफेयर में फैला, फिर एलपीजी में कम हुआ, फिर जाकर बैलेंस बनाने का अपन बात कर रहे हैं। तो अलग अलग डायमेंशन में टाइमलाइन लिख के है ना मेंशन कर सकते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, या टेबुलर फॉर्मेट पे भी अपन है ना एक तरफ पीरियड लिख सकते हैं, एक तरफ उसका स्कोप लिख सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से आंसर लिखने का तरीका, ठीक है। सिग्निफिकेंस है ना, इतना जानने के बाद तो अब तो लगता है सिग्निफिकेंस जानने की, क्योंकि है ना ऑल ऑफ अस नाउ वी अंडरस्टैंड कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन का तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टूल्स एंड टेक्निक्स, प्रिंसिपल्स, थ्योरी, जो टेक्निक्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इंप्रूवमेंट है ना, तो वो तो भाई बहुत जरूरत है ना पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में। इंडिया में भी तो वही समस्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर हो रहा है, इनस्टेबिलिटी है। तो एडमिनिस्ट्रेशन तो स्टेट को एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेबिलिटी भी देता है, कंटिन्यूटी भी देता है अलोंग विद द चेंज, है ना। तो एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही सिग्निफिकेंट हो गया आज के कॉन्टेक्स्ट में। जो सब सिस्टम की बात, सिस्टम थ्योरी जब हम लोग पढ़ेंगे या रिस्क के जो आइडिया पढ़ेंगे सिस्टम थ्योरी में, तो वहां पे आज के जो गवर्नेंस है, नेटवर्क गवर्नेंस, को गवर्नेंस, कोलैबोरेटिव गवर्नेंस, सो यू शुड बी वेरी मच वो फेमिलियर विद दिस टर्म्स, यू शुड बी फ्रीक्वेंटली यूजिंग दिस कंसेप्ट, जो टर्म्स है ना, कोलैबोरेटिव गवर्नेंस, को गवर्नेंस, कोलैबोरेटिव नेटवर्किंग, गवर्नेंस बाय नेटवर्क, है ना, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग नेटवर्क्स। तो ये सब टर्म्स आपके इतने फेमिलियर होना चाहिए, शुड बी able to very obvious to it should become very obvious to use them in the answers, ठीक है। क्योंकि आज का जो डायनेमिक एस्पेक्ट है ना, स्पेशली जो करंट कॉन्टेक्स्ट में हम लोग पढ़ते हैं, ये हर जगह यूज होता है, जीएस में भी होगा, पवेड में भी होगा, एसए में भी यूज होगा। तो सिस्टम, सब सिस्टम, रिस्क के आइडिया को जीएस में बहुत ज्यादा कोट किया जाता है, और सिस्टम थ्योरी ये सब तो बहुत ही ज्यादा काम का है, रिस्क का जो आइडिया है ना, गवर्नेंस में स्पेशली। तो ये हम लोग देखते हैं। और ये से कई सारे लोग ने, कोई भी सिविलाइजेशन फेल करेगा, क्यों फेल करेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर हो गया, है ना। रोमन एम्पायर फेल किया क्योंकि करप्शन, इनएफिशिएंसी आ गया। अगर इंडिया में भी ब्यूरोक्रेसी है ना, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर, तो वहां पे क्या है, बहुत सारा है ना ड्रेन ऑफ वेल्थ, ये सब आ गया, करप्शन था, कहीं ना कहीं यहाँ के रिसोर्स को लेके भाग रहा है, ठीक है। तो जितना ज्यादा करप्शन, इनएफिशिएंसी, वेस्टेज होगा, आखिर वो जो यूएस प्रेसिडेंट है ना गारफील्ड को क्यों मारा गया, क्योंकि वहां पे स्पॉइल सिस्टम था, इनएफिशिएंसी थी, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज था। तो पेंडल्टन एक्ट लेके आया कि भाई 10% हम जो है मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट करेंगे, जो मेरिट, लेकिन उससे यूथ तो सेटिस्फाई होगा नहीं, इसलिए विडो विल्सन एक किताब ऐसे लिख दिया कि भाई अलग से एडमिनिस्ट्रेशन स्टडी करो, टूल्स एंड टेक्निक्स डेवलप करो, ठीक है। तो डॉइट वाल्डो का बुक है ना, कई बार रिफर कर सकते हो इन द इंट्रोडक्शन, नॉर्मली यू कैन रिफर द नेम ऑफ द थिंकर अलोंग विद द बुक इन द इंट्रोडक्शन पार्ट, या कंक्लूजन में भी कई बार आ जाता है। नॉर्मली इंट्रोडक्शन में अपन जब थिंकर पे क्वेश्चन आता है ना, तो वो अपन हाईलाइट करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट है ना। तो ये है कि भाई सब कुछ है ना हर जगह अवेलेबल होना चाहिए गवर्नमेंट।
तो कंक्लूजन डिसिप्लिन, हाँ, एज ए डिसिप्लिन, एज ए इंस्टीट्यूशन और एज एक्टिविटी। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि भाई इसका इंपॉर्टेंस तो है ही, कि स्टेट सर्वाइव ही नहीं करेगा अगर मान लो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अच्छा नहीं है, तो सिविलाइजेशन भी फेल करता है, स्टेट भी फेल करता है। प्लस में लोगों का जो रूल ऑफ लॉ है, सिविल सोसाइटी फ्रीडम है, अगर मान लो पॉलिटिसाइजेशन और इनएफिशिएंसी, करप्ट, इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, हम लोग लोगों को लिबर्टी फ्रीडम दे ही नहीं सकते हैं, है ना। वी कैन नॉट इंश्योर देयर लिबर्टी एंड फ्रीडम। तो इसलिए हम लोग गुड गवर्नेंस का जब बात करेंगे, उसमें क्या है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी हैव कम टू एवोल्यूशन। तो ये मीनिंग, सिग्निफिकेंस है ना। नोट्स में आपको किस प्रकार शॉर्ट नोट बनाना है, आर यू एबल टू गेट द आइडिया? अब 5 मिनट हम लोग ना ओपन डिस्कशन रखते हैं, सो दैट यू कैन आल्सो कम अप एनीथिंग यू वांट टू डिस्कस शेयर। कल हम लोग थोड़ा सा आगे वाले पोर्शन, थोड़ा अभी स्टार्टिंग में हम चाह रहे हैं कि सबको ना, जिसने नोट्स रिवाइज किया, जिसने नहीं किया, तो एवरीवन शुड बी कमिंग एट वन फुटिंग, तो हम आसानी से फिर आगे चीजें मूव कर लेंगे स्पीड में, ठीक है। एनीथिंग टू आस्क? सर मैंने जो है जी राजपूत सर से कोचिंग ली थी, ओके ओके, यस यस। so there are some points which are not in my notes. अच्छा, तो ये देखो, इसलिए ना मैं एनालाइज किया, जी राजपूत सर के भी नोट्स को देखा, बाकी जो इंस्टीट्यूट है, सिनर्जी है, या फिर पवन सर के भी नोट्स है, या फिर जी राजपूत सर का भी जो सॉफ्ट कॉपी है ना, मैंने उसको भी स्कैन किया है ना। Yes sir. तो उसमें मैंने यही देखा कि जो बेसिक आइडिया है वो तो कवर किया हुआ है, ऐसा नहीं कि सिलेबस के पॉइंट्स को नहीं कवर करते हैं, कवर तो करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम आता है एक्सटेंसिव कवरेज जो होना चाहिए, है ना, सिलेबस के अलग अलग एंगल को। तो हम यहाँ पे इसलिए लुकमान आईएएस के नोट्स को इसमें प्रिफर करें कि एक्सटेंसिव कवरेज है, इसको नोट्स को करने के बाद यू विल बी एबल टू जो आपने नोट्स पढ़ा है ना, all those ideas will be repeated here. It's not that you are not going to get those ideas, and you will have those ideas again here. You will be getting to know all the, उसको रिवाइज भी कर लेंगे। क्वेश्चन आंसर में सेकंड रिवीजन होगा, पीवाईक्यू में थर्ड रिवीजन है, टॉपर्स कॉपी में भी एक रफ आइडिया, एक रफ रिवीजन हो जाएगा, फोर्थ रिवीजन। तो वट एवर क्लास नोट्स यू आर फॉलोइंग, यू कैन जस्ट कीप ऑन एडिंग द थिंग्स, है ना। नोट सॉफ्ट कॉपी हम लोग कल ग्रुप बनाते हैं, विल शेयर द सॉफ्ट कॉपी एंड यू कैन टेक द रेफरेंस। सुमित, ठीक है। तो आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? आई विल कीप द पेस, है ना, थोड़ा एक बार कॉम्पेटिबिलिटी बन जाए हम लोग का, सो दैट वी आर ट्यून अप इन अ राइट डायरेक्शन। देन हम लोग थोड़ा स्पीड अप भी करेंगे, कई चैप्टर्स को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट पे ही डील करेंगे, जो डायरेक्ट मतलब कि डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब बन सकते हैं, उसमें कंसेप्चुअल एस्पेक्ट नहीं है। 2-3 चैप्टर में थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करना है थोड़ा, उसके बाद एक बार जब मोमेंटम आ जाते हैं, देन विल रश थ्रू इट। ठीक है, एनी अदर डाउट? सर आज का सेशन अच्छा था। अच्छा, थैंक यू सुधांशु। एंड देखो, दिस इज व्हाट आई कैन गो इन द वे, आई आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड यू कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, हाउ टू मूव अहेड, और आराम से करेंगे, जल्दबाजी नहीं है। पहले 2-3 चैप्टर आराम से करेंगे, है ना। पहला 2 क्लास किया तो एक रफ आइडिया दिया, लेकिन व्हाट आई रियलाइज कि कई लोगों ने नोट्स अभी रिवाइज रिसेंट में नहीं रिवाइज किया, है ना। कुछ लोग है कि ठीक है, सारे कंसेप्ट को बॉम्बार्डमेंट ऑफ कंसेप्ट होगा, धीरे धीरे बिल्डअप कर रहे हैं, ये सारे आइडियाज देखना कितनी बार रिपीट होने वाला है। अगेन यू आर गोइंग टू गेट ऑल दोस थिंग्स रिवाइज इन लेटर टॉपिक्स, है ना। One more thing I want to add कि आप टॉपिक्स बता दीजिएगा नेक्स्ट डे क्या, so that अच्छा, we can ठीक, revise in हाँ advance. डेफिनेटली, है ना। नोट्स शेयर कर देंगे, और क्लास नोट्स देखो, जो सॉफ्ट कॉपी शेयर करेंगे ना, जो टॉपिक हो गया और जो उसके बाद जो टॉपिक्स है, नॉर्मली विल ट्राई टू पिक अप फ्रॉम दैट, बट स्टिल है ना, आई विल कीप यू इन्फॉर्म, है ना, ग्रुप्स में डाल के अपडेट करते रहेंगे हम। वेरी गुड सजेशन। Yes sir. और एनीथिंग टू शेयर, है ना, गिव मी सजेशंस, आई वांट योर फीडबैक, क्या करना है, कैसे करना है। इट्स वेरी फ्लेक्सिबल, है ना, इट इज अ टीम एक्टिविटी ना। अब तो एडमिनिस्ट्रेशन पर टॉप डाउन अप्रोच तो है नहीं, मोनोलोग तो बनाने नहीं इसे। ठीक है, तो अगर मतलब सब कुछ बेटर हो रहा है, देन वी विल प्रोसीड। ओनली यू हैव टू कीप पेशेंस, है ना। स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर आराम से कराएंगे, ताकि है ना, एक बार इस पे कमांड आ गया ना, तो गारंटीड है यू कैन आंसर एनी क्वेश्चन। Excuse me, sir. हाँ, सर यस। ये सेशन थोड़ा जल्दी कोई और टाइम पे हो सकता है क्या? So we'll provide the recorded version in case some of you already there are students who will be watching the recorded lectures. So in case if you are not able to attend the session, you can watch the recordings. We'll share the password also, or we can upload the video and we'll share it with you. No issue.
सर बाय चांस ये रिकॉर्डेड वर्जन्स होगा तो ये कहाँ पर अपलोड होगा सर? लाइक आप There लोग are there are two भेजेंगे या? options. One is private video will upload in the YouTube, or you can will keep it in the Zoom cloud. It is being stored on the Zoom cloud. So we'll share the password in case some topics you want to revise, or in case if you miss out, you can just send me the message. I will forward the link where you can watch it. Understood, sir. Thank you, sir. And is it communicable? Are you all able to understand the language? I am using bilingual because most of the students are more familiar with the Hindi vocabulary. Class mein notes mein hai. Tenzing, are you able to understand whatever things that we have discussed? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Bilingual is fine. This is ठीक है. fine, sir. No worries. Okay. सर आंसर राइटिंग की जो कि जो भी क्लास हम लोग का करने का 3-4 रिवीजन करने का पर्पस क्या है कि आप एक कंसेप्ट को कंसेप्चुअली अपने क्लास नोट्स को रिवाइज किया और अपने नोट्स को अच्छे से रिवाइज करना. मोस्ट आई थिंक ऑल ऑफ यू माइट हैव द क्लास नोट्स आल्सो. यू आर एबल टू लुक एट द थिंग्स, है ना, उसको हाईलाइट करना, कोरिलेट करना, इमेजिन करना, विजुअलाइज करना, स्टोरी को कनेक्ट करना. दिस इज व्हाट आई वांट यू टू डेवलप इन द क्लासरूम सेशंस. क्लास नोट्स का रिवीजन, क्वेश्चन आंसर में उन सारे इमेजिनेशन जो आइडियाज आपने अंडरस्टैंड किया उसको अप्लाई करना. इसलिए 2 ईयर का क्वेश्चन आंसर लिए. एक में आपको कुछ आइडिया लगेगा, फिर दूसरे टेस्ट में आप जो है ना उसको अप्लाई करना सीख जाओ. पीवैक्यू है तो उससे आप एकदम यूपीएससी पैटर्न पे कैसे आंसर करना है, टॉपर के आंसर भी देखेंगे तो उससे भी कुछ आइडिया लगेगा. दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू मूव अहेड. फाइन सर, थैंक यू. या एनीथिंग एल्स, एनीवन? या अरुण, आर यू एबल टू गेट इट? है ना अरुण, दुष्यंत, anything to share you want? Priyanka, are you able to get it? Yeah, Arun. Yes, sir. ठीक है, क्लियर है ना सब? हाँ, yes, sir. Yes. ठीक. तो ये टॉपिक वाइज अगर क्वेश्चन आंसर हो जाए तो ये अच्छा नहीं रहेगा? ठीक है, देखो इसलिए जो अभी क्या ना, इफ यू हैव द लुकमान आईएएस टेस्ट सीरीज शेड्यूल, उसमें क्या किया ना कि जो सिमिलर टॉपिक्स है उसको क्लब कर दिया. जैसे चैप्टर 1 है, इंडिपेंडेंट डिस्कशन Yes, sir. होगा. चैप्टर 1 करेंगे, चैप्टर 2 करेंगे, इंडिपेंडेंटली करेंगे. उसके बाद जो टॉपिक्स जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, सिमिलर है, उसको एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू देने के लिए विल ट्राई टू फॉलो द टेस्ट जो टेस्ट सीरीज का जो शेड्यूल है ना, जो सिमिलर टॉपिक्स क्लब किए गए. तो मोस्टली इट इज चैप्टर वाइज ओनली. ठीक है दुष्यंत? ओके सर. ओके इट विल सर. बी काइंड ऑफ चैप्टर वाइज. नो इज. ओके सर. थैंक यू सर. Okay, I Thank think you, sir. Thank you everyone. It was a great session. We can conclude now, or you can always reach out to me, है ना, any doubt, anything to discuss. और बाद में बीच में informal sessions भी होगा. छोटे ग्रुप्स में हम लोग ना informal, कई बार अगर डाउट्स इकट्ठा काफी हो जाता है तो we can have the 1-to-1 discussion also in between. ठीक है? So you should have the no worries for the course.